Okay, guys, hello everyone. So, this is the second part of day number 6 where we will be discussing respiratory medicine. ठीक है? Where we'll be discussing respiratory medicine. So, um, respiratory medicine as well as your acid base balance. ठीक है? Because if time permits, of course. Otherwise, we'll do it in the next session. So before I start, okay, this is a revision stream. I'm reminding you again. I'm not going to go into details and depths of things, but I'll try to make you understand as to the best of my ability, because medicine is a subject that if you don't understand, you're going to make mistakes. Okay, so especially the respiratory medicine part, the cardio medicine part. Okay, and yeah. So neuroendocrine is over. If you've not checked that out, please do check it out. I'll maybe add a link in the description as well. So with regards to respiratory medicine, I'm going to start at the basics first. Okay, I'll be discussing with you the spirometry volumes and these flow volume curves. Okay, on the basis of these flow volume curves, we'll be discussing the obstructive pattern, restrictive pattern, and everything else. Okay, and subsequently we'll be discussing the alveolar gradient, A minus A gradient, and on the basis of that, we're going to classify things. Okay, so the first 10-15 minutes of this video is going to be uh, more towards concept building. Okay, now as I always do, a little bit of I don't know if I would call these words of wisdom, but this is something that I have seen in my life, and of course it is not, I'm not very old to share life experiences with you guys, but what I feel is, in our field of medicine, right, as opposed to any other field for that matter, this particular field is about consistency, it's about endurance. ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि no matter which college you are doing your MBBS from, or even your MD from that matter, right, what matters is your ability and your desire to keep learning things, to keep thriving, to learn more and know more. The day that drive dies inside you, ना, that is the day I'll call you a bad doctor. ठीक है, दैट ड्राइव शुड बी देयर ऑल द टाइम इन यू. ठीक है, चाहे तुम एमडी कर लो, डीएम कर लो, कुछ भी कर लो, वो एक सीखने की जो ड्राइव होनी चाहिए ना, द विल टू लर्न, द विल टू लर्न न्यू थिंग्स, है ना. कल को अगर कोई पेशेंट आता है, आई एम डूइंग जनरल मेडिसिन जस्ट फॉर दिस, कि इफ एट ऑल अ पेशेंट कम्स टू मी, आई शुड एटलीस्ट बी एबल टू मेक अ प्रोविजनल डायग्नोसिस. यार ये सब चीज़ें हो सकती हैं. ठीक है, और इनको कैसे रूल आउट करना है, इफ आई कैन डू इट वेल एंड गुड, अदरवाइज आई नो हाउ वेयर टू रेफर द पेशेंट. ठीक है, वो प्रोसीजर करा के ही कैन कम बैक टू मी विद द इंटरप्रिटेशन. आई कैन मैनेज हिम फर्दर. एंड द डे आई एम नॉट एबल टू डायग्नोज सम पेशेंट, आई एम नॉट एबल टू इवन, मतलब मुझे भनक नहीं लग रही कि क्या है, दैट इज अ डे आई वोंट बी वेरी हैप्पी अबाउट माई सेल्फ. राइट, तो that is something that is ever present in me, and if that kind of an intuition is present inside, nobody can stop you from becoming good doctor. Because यार बहुत लंबी रेस है यार, I mean, and down the line people give up, and I'm especially talking here to about the droppers and everybody else who think यार मेरा थर्ड अटेम्प्ट है, फोर्थ अटेम्प्ट है. अटेम्प्ट तुम मतलब डजेंट मैटर यार, एज लॉन्ग एज यू आर गेटिंग वेर यू वांट टू गो, इट डजेंट मैटर. ठीक है, तुम्हें मेडिसिन करनी है, एमडी मेडिसिन करनी है, इफ़ यू cannot afford a private college, and if you are not getting DNB also for that matter, and you want to do MD medicine, take another drop. ठीक है, it I mean, you guys might be thinking that he's just talking on and on, he does not have any experience, the kind of difficulties that a dropper faces, the low feeling, the motivation, lack of motivation. तो मुझे ऐसा लगता है ना, एक इंट्रेंसिक मोटिवेशन एक डॉक्टर में हमेशा होना चाहिए. ठीक है, अगर अभी नहीं है ना, तो बिल्ड करो उसे. I don't know if I'm the right person to say this, but this is what I feel. कि you should always have that kind of a drive, that kind of a zeal to move forward and to keep learning. ठीक है, and मुझे ऐसा लगता है कि as long as you're reaching where you want to reach, time doesn't matter. ठीक है, मुझे मालूम है frustration sets and all that, that is definitely true. But if you have that inner desire, inner zeal to do things ना, मुश्किल नहीं लगती फिर चीज़ें. ठीक है, so that was about my I don't know, experience talks or whatever. ठीक है, now let us start with respiratory medicine. So the first thing that we'll be discussing is this flow volume curve that we have in front of you. ठीक है, so what do we have here, right? Do you see this curve in front of you? Yes. तो एक कर्व जो आपको दिख रहा है ना, इसको मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ. सो व्हाट वी हैव इन द वाई एक्सिस, ओके, व्हाट वी हैव इन द वाई एक्सिस
इज बेसिकली द फ्लो, ठीक है, इसको हम बोलते हैं फ्लो। अब वाई एक्सिस में ऊपर की तरफ क्या है सर, ऊपर की तरफ इज एक्सपिरेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। ऊपर की तरफ इज एक्सपिरेशन, नीचे की तरफ डाउनवर्ड्स इज इंस्पिरेशन। डाउन इंस्पिरेशन, अप एक्सपिरेशन, इट इज ऑपोजिट, समझ रहे हो आप बात को, ठीक है। इंस्पिरेशन इज डाउन, एक्सपिरेशन इज अप, ठीक है, ओके। एंड व्हाट इज ऑन दी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस पे इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन, एंड एक्स एक्सिस के ऊपर यू हैव द वॉल्यूम, ओके। अब वॉल्यूम में एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि दिस इज नॉट जीरो, दिस इज नॉट जीरो, दिस पॉइंट इज नॉट जीरो, दिस पॉइंट इज लेट्स से 6 लीटर्स और 5 लीटर्स लाइक आई मेंशनड हियर, ठीक है। तो एक कर्व, दिस इज जस्ट अ बेसलाइन कर्व फॉर यू गाइस, ये कर्व इस तरफ भी एक्सटेंड होगा, इस तरफ भी एक्सटेंड होगा, समझ में आ रही है बात। एंड एज आई मूव towards the left side, my left side, ठीक है, towards this side, towards the side where I've written TLC, the volume keeps on increasing, and towards the left, the volume keeps on increasing, and towards my right, okay, the volume keeps on decreasing, ठीक है। Now just to make you understand this curve, try to assume that you are doing the flow volume curve analysis of a patient, ठीक है, and this is what we do in spirometry also. तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, एंड विद दिस विल लिंक दी FEV1 अपॉन FVC रेशियो, ठीक है। चलो, सो अ पेशेंट हैज कम टू यू एंड you have to start spirometry for that patient. Now you ask the patient to do a forceful expiration, that is where we'll start with. So at forceful expiration, what is the volume that we have in the lung? Residual volume, okay. I hope all of you know the flow volume, not the flow volume loops, the part that I'm about to tell you now, ठीक है। तो दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, उसके बाद अपने पास आता है सर एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, देन यू हैव द टाइडल वॉल्यूम एंड द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके, दिस वन इज द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दिस इज द टाइडल वॉल्यूम, दिस इज द इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, ठीक है। ये वॉल्यूम सबको पता है, ऑलराइट, मूविंग फॉरवर्ड। तो मैंने पेशेंट को बोला फोर्स्ड एक्सपिरेशन, तो फोर्स्ड एक्सपिरेशन पे कौन सी वॉल्यूम बचेगी सर? Yes, this is the volume that will be left at forced expiration, residual volume. तो residual volume पे I'm going to start plotting the curve. Where is it? Yes, यहाँ से I'm going to start plotting the curve. Okay. Now when I start plotting the curve, I'm going to ask the patient to inhale now. अब whenever I'm asking the patient to inhale or exhale now, I'm asking the patient to do it forcefully. ठीक है? So patient starts to inhale and the volume of the lung is going to go up now. ठीक है? So once say it is going to reach to 6 liters or whatever it is, ठीक है। and ultimately when the patient is going to have a forceful inspiration, he is going to reach up to this point, ठीक है। तो इसको क्या बोलता हूं मैं, दिस इज द TLC, टोटल लंग कैपेसिटी, यस। तो TLC पे पहुंच जाएगा पेशेंट, समझ में आ रही है बात आपको, है ना, डू यू सी दिस, TLC पे पहुंच जाएगा आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पिरेशन। नाउ आई एम गोइंग टू आस्क द पेशेंट टू एक्सपायर। अब एक्सपिरेशन में क्या होगा, अगेन द पेशेंट इज गोइंग टू गिव अ फोर्सफुल एक्सपिरेशन। फोर्सफुल एक्सपिरेशन के अंदर द फर्स्ट पार्ट इज गोइंग टू बी फास्ट एक्सपिरेशन, एफर्ट डिपेंडेंट पार्ट में इसको कह सकता हूँ। अगर तुम यू ट्राई दिस, यू ट्राई टू एक्सपायर वेरी फास्ट, you try to do a forceful expiration, initially your expiration speed will be very high. After that, no matter how hard you try to push, your speed will not be dependent on your effort, your speed will be dependent on your respiratory pathway compression. जितना compression आपका pathway अंदर से करेगा ना, you cannot force this. This is effort independent part. The initial part is effort dependent and the final part is effort independent. Do you understand this? समझ में आ रही बात? दोबारा रिपीट करता हूँ. I'm going to ask the patient to sit down here, okay, and then I'm going to ask the patient to do a forceful inspiration from residual volume to TLC. After reaching TLC, I will ask the patient to do expiration. Of course, the initial part is effort dependent, last part is effort independent. समझ में आ गई बात? ठीक है. That is what I've tried to explain here, and that is what I've written here also. Starting at, इसने starting at maximum inspiration किया, तो here he has started at TLC, ठीक है. And then I'm asking the patient to expire forcefully. Initial part is effort dependent, final part is effort independent, ठीक है. And this effort independent part is due to dynamic compression of airways. Let me just thicken my pen a little bit. Yes, dynamic compression of the airways. Understood? Okay. Now step 3, after reaching residual volume. Now this is again same thing. मतलब residual volume के बाद आप क्या कराओगे पेशेंट को? You'll ask the patient to do a forceful inspiration. तो ये inspiratory curve बन गया, expiratory curve बन गया. अब let's talk about the disorders and how this curve is going to change. ठीक है? Now, can you tell me what is the distance between the residual volume and the TLC called? मतलब मैं किसकी बात कर रहा हूँ? मैं बात कर रहा हूँ इस वॉल्यूम की. What is this volume? This volume is TLC. What is this volume? This is the vital capacity.
the forced vital capacity, because we are asking the patient to do forceful things, forceful expiration, forceful inspiration. So this will be the FVC, forced vital capacity. Okay, chalo, so ये FVC हो गया, right? I hope I'm making sense to you. I'm going a little bit slowly because this is slightly conceptual to understand. ठीक है, now let us talk about something called as mid expiratory flow rate. ठीक है, इससे मेरा क्या मतलब है? What do I mean by mid expiratory flow rate? This is the expiratory flow rate between 25 to 75% of expiration. मतलब अगर ये कर्व है तो लेट्स से कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक की जो एक्सपिरेटरी रेट है, रेट, उसको हम बोलते हैं मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट. अंडरस्टूड? दिस इज द मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, 25 to 75%. ठीक है, नाउ यू नो जस्ट बेयर विद मी, ट्राई टू अज्यूम दैट देयर इज अ पेशेंट ऑफ व्हाट, देयर इज अ पेशेंट ऑफ COPD. ठीक है, तो आप सबको पता है COPD क्या होता है. व्हाट इज COPD? COPD इज अ स्पेक्ट्रम दैट रेंजेस फ्रॉम क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस टू एम्फाइसीमा. सबको पता है बात. इट इंक्लूड्स दिस स्पेक्ट्रम एंड अ मिक्सचर ऑफ दिस स्पेक्ट्रम इज व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स अ क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. ठीक है, अब इसमें आप बात समझना. लेट अस कंसीडर केस ऑफ एम्फाइसीमा फर्स्ट. ठीक है, इवन ब्रोंकाइटिस फॉर दैट मैटर. व्हाट हैपेंस इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस? Supposing this is the airway, respiratory airway, what happens? There is increased mucus secretion in your entire airway, okay, and that is why there is obstruction. And everybody knows in COPD the obstruction is more to expiration. The air is not able to come out, even in chronic bronchitis, even in emphysema. Okay, chronic bronchitis में क्यों नहीं आ पाती है बाहर? Because of this excess mucus. अंदर आ जाएगी, बाहर नहीं निकल पाएगी. इसका भी मैं एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, ओके. नाउ एम्फाइसीमा में क्या होता है? एम्फाइसीमा में देयर इज फॉर्मेशन ऑफ बुल्ला फॉर्मेशन एंड एयर इज ट्रैप्ड. एयर ट्रैपिंग होती है. ठीक है, आप इसको माइंड में रखते हुए लेट अस मूव फॉरवर्ड. सो ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑब्स्ट्रक्टिव वर्सेस रेस्ट्रिक्टिव. तो मैंने आपको ये बोला कि पेशेंट एक्सपायर नहीं कर पा रहा है, पेशेंट इज नॉट एबल टू एक्सपायर. सो व्हाट विल हैपन टू हिज मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट? कम हो जाएगी ना. यस, सो दिस मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट इज हाईली सेंसिटिव फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज. अंडरस्टूड? Highly sensitive for obstructive pulmonary disease. Okay, चलो, keeping that concept in mind, first we'll cover up obstructive, then we'll move towards restrictive. ठीक है, obstructive pulmonary disease के अंदर remember the fact that capacities and rates are more affected. Volumes इतनी ज़्यादा affect नहीं होती है, capacities और rates affect होती है. Okay, capacity से मेरा क्या मतलब है? vital capacity. Capacity क्या होती है? It is the difference between two volumes basically. ठीक है, तो volumes are not much affected, but capacities and rates are more affected. है ना, तो यू हैव टू कीप दिस इन माइंड. अब इसके आगे बढ़ते हैं. नाउ लेट अस टॉक अबाउट दिस FEV1 अपॉन FVC रेशियो. ठीक है, पहले मैं आपको बताता हूँ FVC क्या होता है. ठीक है, व्हाट इज FVC? FVC इज वाइटल कैपेसिटी. तो व्हाट इज FVC? FVC इंक्लूड्स व्हाट? एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, टाइडल वॉल्यूम एंड इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अब सबको पता है व्हाट हैपेंस इन COPD. टेल मी व्हाट हैपेंस इन COPD. बताओ. COPD के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड that the residual volume increases. Very important point. Residual volume जो है वो बढ़ जाती है. क्यों? क्योंकि there is air trapping. समझ में आ गई बात? ठीक है, तो जब residual volume बढ़ेगी, okay, when residual volume will increase, है ना, what will happen to the TLC? TLC का क्या होगा? What will happen to TLC if your residual volume is going to increase? TLC will also increase. है ना, तो ये बातें आपको याद रखनी है. TLC बढ़ती है या नॉर्मल रहेगी? बहुत कम बढ़ेगी या नॉर्मल रहेगी? रेसिडुअल वॉल्यूम इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग. दिस इज इंक्रीज इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. दैट इज व्हाट आई वांट यू टू रिमेंबर. ठीक है, नाउ व्हेन आई टॉक अबाउट FEV1, मुझे बताओ FEV1 का क्या होगा? मैंने आपको बताया था एक्सपिरेटरी वॉल्यूम, एक्सपिरेटरी फ्लो रेट सब कुछ कम होगा, तो FEV1 विल बी लो. बिकॉज ऑफ द फैक्ट FEV1 इज लो, what happens is FEV1 upon FVC decreases. ठीक है, इनफैक्ट अगर मैं वाइटल कैपेसिटी की बात करूं ना तो वो भी कम हो जाता है ना. वाई? बिकॉज ऑफ दिस. ठीक है, एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम आल्सो फॉल्स इन COPD. ओके, दिस इज नॉट एस्टैब्लिश्ड, सो लेट अस जस्ट लीव दिस. एक बस आप just for the conceptual thing, you can remember one thing for sure, that your residual volume, this is going to increase in COPD. ये बात याद रखनी है. दूसरी बात याद रखनी है, FEV1 upon FVC ratio is going to fall. कितना fall करेगा? We'll discuss this. ठीक है, then we have DLCO. What is DLCO? DLCO is diffusion lung capacity for carbon monoxide. ठीक है, इसके details we'll discuss. Now this DLCO depends upon multiple factors like the membrane, ठीक है, like your perfusion,
लाइक द गैस दैट इज बीइंग यूज्ड। यहाँ पर अपन CO कार्बन मोनोऑक्साइड यूज करते हैं, ठीक है। सो रिमेंबर DLCO, दो चीजें याद रखना ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज के अंदर, दो चीजें होती हैं, क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस एंड एम्फाइसीमा। रिमेंबर दैट इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस के अंदर योर क्या बोल रहा था मैं, DLCO, यस, DLCO इज नॉर्मल इन क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। इवन अगर मुझसे कोई पूछ रहा है COPD के अंदर क्या होता है DLCO इज नॉर्मल, ओके, बट इन एम्फाइसीमा DLCO is decreased, okay, DLCO is decreased in emphysema. In DLCO it is affected. Remember, E for emphysema, E for affected. What is affected? DLCO is affected. Simple. चलो, alright, अब आते हैं restrictive lung disease पे। restrictive lung disease is nothing, it is simple to understand. restrictive lung disease को मैं डिवाइड करूंगा pulmonary और parenchymal, rather I would say parenchymal एंड एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल। पैरेंकाइमल मतलब लंग के अंदर की प्रॉब्लम, फॉर एग्जांपल सिलिकोसिस, एस्बेस्टोसिस, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज, NSIP, UIP, व्हाटएवर इट इज फॉर दैट मैटर, ठीक है। दीज आर रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीजेस इनसाइड द लंग, पैरेंकाइमल। एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल, लेट्स से some patient has scoliosis, some patient has some kind of a pneumothorax for that matter, or anything that is going to restrict the expansion of the lung, that is restrictive lung disease, extra parenchymal, ठीक है। Remember that in parenchymal as well as extra parenchymal restrictive lung disease, volumes are more affected as compared to rates and capacities. तो यहाँ पे the difference is residual volume. Residual volume COPD में क्या होगी, increase होगी, but in restrictive lung disease residual volume will fall, very very important, okay, mostly it will fall. मैं इंटरस्टिशियल की बात कर रहा हूँ, एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल के अंदर इट मे राइज, ठीक है, एक्स्ट्रा पैरेंकाइमल के अंदर इट मे राइज, आई विल शो यू द कर्व्स, ठीक है, उससे आपको और अच्छे समझ में आ जाएगा। रिमेंबर DLCO इज डिक्रीज्ड इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, okay, DLCO is decreased in restrictive lung disease, okay, and apart from that everything is decreased basically. रेसिडुअल वॉल्यूम कम हो रहा है, वाइटल कैपेसिटी कम हो रहा है, TLC भी कम हो रहा है, ठीक है, DLCO भी कम हो रहा है, बट रेट्स आर नॉर्मल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रेट्स आर नॉर्मल। समझ में आ गई बात, ठीक है। आई होप आई मेड माई सेल्फ अबंडेंटली क्लियर, ओके। जस्ट लुक एट दिस ब्यूटीफुल डायग्राम दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ठीक है। ये क्या है एक्सपिरेशन, ये क्या है इंस्पिरेशन, ओके, और ये क्या है सर, व्हाट इज दिस इज द वॉल्यूम। रिमेंबर यहाँ से यहाँ मतलब 0 से लेकर के लेट्स से 7, 8 वॉट एवर यू वांट, यहाँ से यहाँ चालू होती है, ठीक है। तो अगर मैं इस कर्व की बात करूँ, दिस पर्पल कर्व इज नॉर्मल, ठीक है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड, टेल मी व्हाट विल हैपन इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। आई टोल्ड यू दैट इन ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीजेस, है ना। अब मुझे बताओ रेसिडुअल वॉल्यूम कौन सी होती है, रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, पहले तो बताओ। रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होती है, ठीक है। तो ये जो कर्व है इसमें पहले लेट्स जस्ट लेबल दिस कर्व, ओके। सो दिस इज द रेसिडुअल वॉल्यूम, ओके, दिस इज द TLC। अब ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में आपको बताया कि रेसिडुअल वॉल्यूम इंक्रीज होगी, तो रेसिडुअल वॉल्यूम यहाँ से यहाँ हो जाएगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल इफ दिस वाज 2 तो आई थिंक 0.5 कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये इंक्रीज होकर यहाँ पर क्या होगी 1 या 2 हो गई, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू, व्हाट विल हैपन टू रेसिडुअल वॉल्यूम, इट इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना। TLC के बारे में आपको क्या पता था, TLC या तो नॉर्मल होगी या इंक्रीज भी हो सकती है, सो TLC इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, सो दिस इज द कर्व हियर फॉर ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज। इसके अलावा क्या हो रहा है यहाँ पर, व्हाट इज दिस, यस, दिस इज बुलस एयर ट्रैपिंग, ठीक है। तो एफर्ट डिपेंडेंट पार्ट इज ऑल राइट, बट जब एफर्ट लगाना बंद किया तब एयर ट्रैप होनी चालू हो गई, दैट इज वाई यू सी दिस काइंड ऑफ अ कर्व इन COPD। अंडरस्टूड गाइस, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस। COPD का कर्व हो गया, ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कर्व। नेक्स्ट कर्व इज दिस वन, विच वन, दिस कर्व दैट आई हैव ड्रॉन फॉर यू, ओके। ये COPD का कर्व हो गया, नॉर्मल कर्व हमको आता है, तो रेड कर्व एंड पर्पल कर्व आर डन। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ब्राउन कर्व, okay, which is about restrictive lung disease. What I tell you about restrictive lung disease, restrictive lung disease के अंदर रेसिडुअल वॉल्यूम का क्या होता है, रेसिडुअल वॉल्यूम डिक्रीजेस, ठीक है। तो रेसिडुअल वॉल्यूम इज गोइंग टू डिक्रीज मतलब इस साइड मूव कर रही है रेसिडुअल वॉल्यूम, ठीक है। सो दिस बिकम्स द कर्व ऑफ रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, बट विच वन, दिस इज फॉर पल्मोनरी और पैरेनकाइमल रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। दिस इज पैरेनकाइमल रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है जी। नाउ द अदर कर्व, okay, is this one, this is nothing but your extra parenchymal restrictive lung disease, है ना। तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बस जो कर्व है ना वो छोटा हो गया, कर्व विद इन अ कर्व कह सकते हो आप इसको, ठीक है। ओके, नाउ लेट अस टॉक अबाउट द लास्ट वन, द लास्ट फ्लो वॉल्यूम कर्व्स, ठीक है।
तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, हाई टीएलसी, हाई रेसिडुअल वॉल्यूम, डिक्रीज्ड मिड एक्सपिरेटरी फ्लो रेट, यस, लेफ्ट शिफ्ट स्कूप्ड आउट कर्व, रिमेंबर लेफ्ट शिफ्ट स्कूप्ड आउट कर्व, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, पैरेन्काइमल एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल के हिसाब से द मेन कॉन्सेप्ट रेस्ट्रिक्टिव के अंदर वॉल्यूम्स जो है वो अफेक्ट होती हैं, डिक्रीज होती हैं, रेट्स और कैपेसिटीज अफेक्ट ज़्यादा नहीं होती है। राइट शिफ्ट कर्व फॉर पैरेन्काइमल एंड एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल के अंदर कर्व विद इन अ कर्व, ठीक है, ओके। लूप्स फॉर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट दैन द व्हाट यू डिस्कस्ड आल्सो, क्योंकि क्वेश्चन इस पे ज़्यादा आ रहे हैं आजकल। नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, ओके। छोटा सा एक आपको मैं बताता हूँ, लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन। दिस इज द लंग, लेट्स से, ठीक है। तो सिंपल हम बात करते हैं, ये थोरैसिक कैविटी हो गई ना, इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर होगा वोकल कॉर्ड, ठीक है, ये है वोकल कॉर्ड, ये थोरैसिक कैविटी। तो अगर मैं ऑब्स्ट्रक्शन की बात करूं, तो ऑब्स्ट्रक्शन को मैं बता सकता हूं कि वो या तो एक्स्ट्रा पल्मोनरी, एक्स्ट्रा थोरैसिक है या इंट्रा थोरैसिक है। अब एक सिंपल सी बात आप ध्यान रखना कि जो इंट्रा थोरैसिक ऑब्स्ट्रक्शन होता है ना, लंग के अंदर वाला, बिलो द वोकल कॉर्ड्स, इसके अंदर, दोनों के अंदर एक्चुअली बॉल वॉल मैकेनिज्म होता है। बॉल वॉल मतलब या तो इंस्पिरेशन या तो एक्सपिरेशन, दोनों में से एक नॉर्मल होगा और एक अबनॉर्मल होगा, ठीक है। लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। इफ एट ऑल देयर इज एन इंट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, लेट्स से दिस, तो इसके अंदर क्या होता है ना, जैसे आपने सीओपीडी में पढ़ा होगा, तो यहाँ पर एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड इन इंट्रा पल्मोनरी ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है। मतलब जब बंदा सांस ले रहा है तो सांस अंदर आ गई है, लेकिन बाहर आते टाइम ये बॉल वॉल इसको ऑब्स्ट्रक्ट कर देता है, ठीक है। दिस इज अबाउट इंट्रा पल्मोनरी। व्हाट इज अफेक्टेड, एक्सपिरेशन इज अफेक्टेड। अब इसको इसके ऊपर आ जाते हैं, किसके ऊपर, अबव द वोकल कॉर्ड्स पे। अबव द वोकल कॉर्ड्स के अंदर व्हाट हैपेंस इज अगेन सेम बॉल वॉल मैकेनिज्म, बट हियर इंस्पिरेशन इज नॉर्मल, बट एक्सपिरेशन के ऊपर ऑब्स्ट्रक्शन आता है। सॉरी, इंस्पिरेशन, या सॉरी, एक्सपिरेशन इज नॉर्मल, रियली सॉरी अबाउट दिस, एक्सपिरेशन इज नॉर्मल बट इंस्पिरेशन पे ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है, ओके, राइट। एंड द थर्ड वन इज फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। ये फिक्स्ड है सर, इसके अंदर बॉल वॉल मैकेनिज्म नहीं है, ये ना तो एक्सपिरेशन होने देगा ना ही इंस्पिरेशन होने देगा, बोथ ऑफ देम विल बी ऑब्स्ट्रक्टेड, ठीक है, फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। विद दिस इन माइंड, लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड what I've written subsequently. Okay, right, I hope you're enjoying the session, because I think respi and cardio are my strong suits, even neuro is, but I was not able to cover it properly only because of the fact that time is lacking and I cannot cover entire medicine in such a small amount of time, okay. So let's come to this. See, I told you extra pulmonary, एक्स्ट्रा थोरैसिक एंड इंट्रा थोरैसिक। मैंने आपको बताया इंट्रा थोरैसिक के अंदर बॉल वॉल मैकेनिज्म, व्हाट इज ऑब्स्ट्रक्टेड, एक्सपिरेशन इज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो एक्सपिरेशन का कर्व दिख रहा है आपको, ऐसा हो गया, ये एक्सपिरेशन का कर्व है ना, सो इट इज बिकम लाइक दिस। एंड इन इंट्रा थोरैसिक, मतलब इंट्रा थोरैसिक के अंदर ये है, एक्स्ट्रा थोरैसिक के अंदर योर इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड, देखो इंस्पिरेशन इज अफेक्टेड, एंड इन फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन बोथ आर अफेक्टेड। दिस इज नोन एज योर बॉक्स शेप्ड कर्व, अंडरस्टूड। एग्जांपल ऑफ फिक्स्ड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज subglottic stenosis, and this subglottic stenosis typically occurs in a post-intubation patient, and this is actually the reason that after intubation, this is something that is practical, ठीक है, ये मेरे टीचर्स ने मुझे बताया कोविड के टाइम पे, कि after a patient has been intubated for COVID, after he has recovered, you still put him on something called as non-invasive ventilation just because of this, क्योंकि कई बार क्या होता है, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन का रिस्क होता है, ये तो आपको देखना ही होता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, पोस्ट इंट्यूबेशन द पेशेंट का जो रेस्पिरेटरी एफर्ट होता है वो कम होता है, तो टू असिस्ट इट यू पुट द पेशेंट ऑन एनआईवी, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, ऑलवेज 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 चेक फॉर सबग्लॉटिक स्टेनोसिस, वेरी कॉमन इन पोस्ट इंट्यूबेशन पेशेंट्स, ओके। फिक्स्ड अपर एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इज बॉक्स shaped curve, okay. So that completes the flow volume loops. Now let me discuss with you the next important topic of classification of pulmonary diseases based on A minus A gradient, ठीक है। तो ये रहा सर A minus A gradient, this is on the, यहाँ से हम नहीं शुरू करेंगे, this is my must know topics are going to start soon, but I thought कि before I touch that part, I wanted to make sure that you guys are aware of the basics of pulmonary medicine, ठीक है। So we'll discuss the basics first. So look at this, okay. A minus A gradient, okay, this is known as the alveolar gradient. क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं alveolar gradient. Just a second. Yes, so it is called the alveolar gradient, okay. So इसको बोलते हैं alveolar gradient या फिर PA minus A gradient, ठीक है। अब बात समझना आप, what is P capital A, what is P small a? P capital A is the pressure of oxygen. Basically, PA minus A is for oxygen only. P capital A is pressure of oxygen outside or in the air. Okay, that is PA. What is small a?
दिस इज द प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द आर्टिकल ब्लड। समझ में आई बात आपको? ठीक है, ओके। या तो आप पी ए को कह सकते हो कि एल्वियोलाई के लेवल पे, ठीक है, एल्वियोलाई के लेवल पे क्या प्रेशर है, एंड पी स्मॉल ए इज ब्लड के अंदर प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या है। ओके, नाउ ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस। नॉर्मली, ठीक है, एयर एंटर्स फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, गोज इनटू द लंग एंड इट डिफ्यूजेस। ठीक है, तो ये जो ग्रेडियंट होता है दिस शुड बी वेरी लेस इफ द लंग इज फंक्शनिंग नॉर्मली, क्योंकि लंग का क्या फंक्शन है कि एयर से ऑक्सीजन लेके ब्लड में डालना। तो ग्रेडियंट ज्यादा नहीं होना चाहिए ना अगर मेरा लंग प्रॉपर्ली काम कर रहा है। समझ में आ रही बात? ठीक है, तो ग्रेडियंट शुड बी लेस। लेस मतलब कितना? 25 से कम होना चाहिए, 5 to 25। ओके, सो द ग्रेडियंट ए माइनस ए ग्रेडियंट नॉर्मली शुड बी 5 to 25। ठीक है, ये वैल्यू एक बार चेक कर लेना बिकॉज आई हैव सीन दिस वैल्यू टू बी डिफरेंट इन डिफरेंट सोर्सेज, बट दिस इज द वैल्यू दैट आई फॉलो। ठीक है, 5 to 25। okay, a minus gradient, this is normal if the lung is functioning properly. Now make sense of this again कि supposing the patient is living in some kind of high altitude place जहाँ पर air के अंदर problem है, the quality of air is not good, तो what will happen, this A, capital A will fall, मतलब in that case also when the quality of air is not good the patient will have hypoxemia, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन तो नहीं आ रहा है। बट अब हमें असेस करना है कि ऑक्सीजन क्यों नहीं आ रहा है। ठीक है, वी नीड टू फाइंड आउट, दिस इज द रीजन दैट आई एम यूजिंग दिस ग्रेडियंट टू फाइंड आउट द कॉज ऑफ हाइपोक्सीमिया। ठीक है, नाउ लेट अस कम टू दैट केस वेयर द क्वालिटी ऑफ एयर इज नॉट गुड। फॉर एग्जांपल अब दिल्ली की बात कर लो, ठीक है, क्वालिटी ऑफ एयर इज नॉट गुड, देयर इज लिटिल ऑक्सीजन इन द एयर, जस्ट हाइपोथेटिकली स्पीकिंग। ठीक है, या फिर हाई एल्टीट्यूड की बात कर लो, बेटर एग्जाम्पल, वहां पर ऑक्सीजन क्या होता है, हवा में कम होता है। तो वहां पर आप ट्राई टू अंडरस्टैंड द लंग ऑफ द पेशेंट इज नॉर्मल, तो जितना ऑक्सीजन मिल रहा है उतना वो ऑब्जॉर्व कर रहा है, तो ग्रेडियंट क्या होगा, ग्रेडियंट विल बी नॉर्मल, है ना। अगर बाहर की प्रॉब्लम है तो ग्रेडियंट नॉर्मल होगा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल समबडी हैज निमोनिया और समबडी हैज कोविड फॉर दैट मैटर, तो उसके अंदर क्या होगा, ग्रेडियंट अब नॉर्मल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मेरा लंग फंक्शन नहीं कर पा रहा है, बाहर की एयर तो ठीक है, अंडरस्टूड। तो द ग्रेडियंट विल बिकम मोर देन 25। ओके, नाउ हाउ डू आई कैलकुलेट दिस ग्रेडियंट? इज वेरी सिंपल, PaO2 माइनस PaO2। अब ये तो मुझे पता है, दिस इज समथिंग दैट आई कैन नो, राइट, ये मुझे पता होती है, नहीं सॉरी ये मुझे पता होती है, एक सेकंड रुको, P कैपिटल ए P स्मॉल A2। ठीक है, अब ये एल्वियोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन है, ये पता करना मुश्किल है। P स्मॉल A2 कैसे पता चलेगा? ABG से, आर्टिकल ब्लड गैस। ठीक है, मैंने ABG कराया, PaO2 निकाल लिया, नॉर्मल कितना होता है 80 to 100, दिस इज नॉर्मल PaO2। ठीक है, स्मॉल A2 ये मेरे को पता चल गया ABG से। अब मुझे ये भी पता करना है ना, आई नीड टू फाइंड आउट दिस ऑल्सो। कैसे पता करेंगे सर? जब भी मैं ABG कराता हूँ ना, इट टेल्स मी अबाउट द आर्टिकल ब्लड, इट टेल्स मी अबाउट व्हाट, इट टेल्स मी अबाउट आर्टिकल ब्लड। तो आर्टिकल ब्लड के अंदर मैं ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आयन लेवल्स, ये सब मेजर करता हूँ ABG के थ्रू। ओके, तो आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि ABG के थ्रू आई कैन गेट PCO2 PO2 फॉर आवर कन्वीनियंस एट दिस पॉइंट। मल्टीपल थिंग्स वी कैन गेट, बट अगेन पीएच बहुत सारी चीजें मिलती है, बट दिस इज समथिंग दैट वी कैन गेट। सो वी आर गोइंग टू यूज दिस वैल्यू टू एक्सट्रैक्ट दिस वैल्यू। तो इसके लिए फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला याद रखना है बस। फॉर्मूला क्या है सर? 150 माइनस 5/4 मल्टीप्लाइड बाई PaCO2 क्लोज ब्रैकेट, ओके, माइनस PaO2, ये तो हमें पता चल गया। तो बेसिकली ABG की आपके पास अगर रिपोर्ट है तो आप ये फॉर्मूला लगा के A माइनस ए ग्रेडियंट असेस कर सकते हो। बेस्ड ऑन दैट लेट अस फाइंड आउट द कॉजेस। मैंने आपको बताया अगर तो नॉर्मल है तो इसका मतलब लंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लंग के बाहर कोई प्रॉब्लम है। ठीक है, तो लंग के बाहर क्या प्रॉब्लम हो सकती है? देखो, लंग के बाहर दो प्रॉब्लम हो सकती है सर। ठीक है, लंग के पैरेन्काइमा इज नॉर्मल, लंग का पैरेन्काइमा इज नॉर्मल, दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू। ठीक है, लंग के अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ तो फिर प्रॉब्लम कहाँ है? प्रॉब्लम या तो हो सकती है आपके न्यूरोमस्कुलर सिस्टम में, ठीक है, आपका लंग एक्सपैंड नहीं कर पा रहा, बंद नहीं हो पा रहा बिकॉज ऑफ सम काइंड ऑफ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर। ठीक है, या फिर बाहर की क्वालिटी ऑफ एयर खराब हो सकती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लो क्वालिटी ऑफ एयर लाइक आई डिस्कस्ड, हाई एल्टीट्यूड, या फिर ऑक्सीजन सप्लाई फेलियर। अब पेशेंट वाज ऑन ऑक्सीजन सप्लाई बंद हो गया, पेशेंट की क्वालिटी ऑफ एयर कम हो गई, A माइनस ग्रेडियंट इज नॉर्मल बट द पेशेंट इज हैविंग हाइपोक्सीमिया, अंडरस्टैंड। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नॉर्मल क्वालिटी अच्छी है, लेकिन क्या हो रहा है, मेरे ब्रेन में या मेरे न्यूरोमस्कुलर कनेक्टिविटी में कोई प्रॉब्लम है। फॉर एग्जांपल आई हैव अ ब्रेन स्टेम लीजन। अब मैंने आपको बताया था इन द लास्ट सेशन दैट इन पोंटाइन इन्फार्क्ट दैट इज रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम, रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाती है। अब कम हो जाएगी तो क्या होगा? लंग इज नॉर्मल बट द प्रॉब्लम इज कि मेरे ब्रेन स्टेम के अंदर देयर इज एन इन्फार्क्ट ड्यू टू विच माई रेस्पिरेटरी ड्राइव इज नॉट बीइंग मेंटेन्ड। तो उसकी वजह से अगेन A माइनस ग्रेडियंट विल बी नॉर्मल बट हाइपोक्सीमिया विल बी देयर।
ओके, या फिर देयर कैन बी अ न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर, फॉर एग्जाम्पल एंड स्टेजेस ऑफ ALS फॉर दैट मैटर, या फिर सम काइंड ऑफ एक्स्ट्रा पल्मोनरी रिस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है, या फिर कोई हाइपोवेंटिलेशन डिसऑर्डर. विल डिस्कस ऑल ऑफ दिस इन डिटेल. ठीक है. नाउ when is PA minus A increased? In case of pulmonary causes, any pulmonary cause for that matter, COPD, ILD, pneumonia, pulmonary edema, etc. Any kind of pulmonary disorder, A minus A gradient will be increased. ठीक है. तो कई बार क्या होता है ना, प्रैक्टिस में हमें समझ नहीं आता था कि पेशेंट को निमोनिया की वजह से हो रहा है हाइपोक्सिया, या पेशेंट को किसकी वजह से हाइपोक्सीमिया हो रहा है. तो ये हमने कैसे एसेस किया हाइपोक्सीमिया है, मैंने बस पल्स ऑक्सीमीटर लगाया, है ना. पल्स ऑक्सीमीटर लगा के मैंने देख लिया हाइपोक्सीमिया है कि नहीं है. अगर है तो मैंने क्या किया, मैंने EBG किया. EBG पे कंफर्म माई हाइपोक्सीमिया विद द हेल्प ऑफ PSPO2, है ना. उसके बाद आई ऑल्सो गॉट PCO2 एंड मैंने इसका A माइनस ग्रेडियंट निकाल के देख लिया कि प्रॉब्लम पल्मोनरी है या एक्स्ट्रा पल्मोनरी है, एंड देन आई एम गोइंग टू फर्दर असेस द पेशेंट. ठीक है. ओके. हाँ, तो यस, लेट अस फर्दर एलॉबरेट ऑन इंक्रीज्ड A माइनस ए ग्रेडियंट. अब इसके बाद मैं क्या करूंगा. ठीक है. जब मुझे पता चल गया कि A माइनस ए ग्रेडियंट लेट से 30 है, 30 है, तो मुझे पता है कि देयर इज सम काइंड ऑफ अ लंग प्रॉब्लम. अब लंग प्रॉब्लम क्या हो सकती है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू मेक सेंस ऑफ दिस. दो चीजें, दो तरह की प्रॉब्लम हो सकती है. या तो प्रॉब्लम हो सकती है एल्वियोलाई के अंदर. ओके, आइदर देयर कैन बी अ प्रॉब्लम इन द एल्वियोलाई, नंबर वन. Number two is that either there can be some kind of a ventilation perfusion mismatch. Again, try to understand. मेरा गैस एक्सचेंज किस पे डिपेंड करता है. गैस एक्सचेंज इनसाइड माई लंग डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, द एयर दैट इज एंटरिंग एंड द ब्लड दैट इज कमिंग. दोनों चीजों पे डिपेंड करता है. ठीक है. अगर तो मेरी वेंटिलेशन कम हो रही है, ठीक है, या फिर एयर ट्रैपिंग हो रही है जिसमें वेंटिलेशन की प्रॉब्लम है, ठीक है, तो उसकी वजह से हाइपोक्सीमिया होगा. या फिर मेरा परफ्यूजन खराब है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी इन्फेक्शन है, अगेन पल्मोनरी एम्बोलिज्म है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, परफ्यूजन नहीं हो पा रहा है. परफ्यूजन नहीं होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं होगा. अंडरस्टैंडिंग दिस. तो VQ मिसमैच इज वन कॉज. ठीक है. अदर देन दैट एल्वियोलर डिफेक्ट इज अनदर कॉज. एल्वियोलर डिफेक्ट मतलब, एल्वियोलर में प्रॉब्लम मतलब क्या, इट कैन बी ARDS, यस, इट कैन बी निमोनिया, ठीक है, यहाँ पर पस भरी हुई है, पल्मोनरी एडिमा, पानी भरा हुआ है. ओके, अंडरस्टैंडिंग दिस, समझ में आ रही बात है. ठीक है. तो बेस्ड ऑन दिस आई एम गोइंग टू असेस नाउ. लेट अस ट्राई टू असेस, लेट अस ट्राई टू असेस, है ना. अच्छा, यहाँ पर दो और लाइनें लिखी हुई है, यस, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. हाइपोक्सीमिया मतलब क्या, हाइपोक्सीमिया मतलब PaO2. रिमेंबर PaO2 जो मैंने ABG पे किया था ना, मैंने आपको बताया नॉर्मल 80 to 100 होता है. अगर 60 से कम है तो मैं बोलूंगा हाइपोक्सीमिया, कंफर्म हाइपोक्सीमिया. ठीक है. और रिमेंबर SpO2, प्लीज अंडरस्टैंड एंड रिमेंबर दिस वैल्यू. SpO2 के ऊपर हाइपोक्सिया और हाइपोक्सीमिया दो अलग चीजें. पहली बात तो हाइपोक्सीमिया इज डिक्रीज ऑक्सीजन इन द ब्लड. ठीक है. तो हाइपोक्सीमिया लेवल करने के लिए SpO2 कितना होना चाहिए, 88, इक्वल और लेस देन 88%. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. PaO2, ठीक है, PaO2 इज द गोल्ड स्टैंडर्ड टू मेजर हाइपोक्सीमिया. बट इफ यू आस्क मी कि ABG कराए बिना हाउ डू आई मेजर हाइपोक्सीमिया, this is the most sensitive test that I'm about to tell you. This is something that everybody, every pulmonologist, every MD medicine, or even every MBBS at this point should know. ठीक है. कि most sensitive test for hypoxemia, okay, other than your PaO2 of course, is a 6-minute walk test. आप पेशेंट को कहते हो 6 मिनट वॉक करवाओ, ठीक है, उसके बाद यू चेक द फॉल इन SpO2. तो मतलब पहले आप एक बार SpO2 मेजर करते हो पेशेंट का, यू आस्क द पेशेंट टू वॉक फॉर 6 minutes अप एंड डाउन, एंड देन यू मेजर द फॉल, डिक्रीज इन SpO2. इफ इट इज लेस देन, if the decrease in more than 3% ऑफ बेस लाइन, फॉर एग्जाम्पल 96 था और 6 मिनट वॉक करने के बाद 92 हो गया, ठीक है, तो इसको हाइपोक्सीमिया बोलेंगे क्या, इसको हाइपोक्सीमिया नहीं बोलेंगे. मैंने आपको बताया था SpO2 इसके आसपास होना चाहिए. ठीक है. कम हो रहा है, ठीक बात है, अंडरस्टैंडिंग दिस. ओके, ठीक है. दैट इज अ टेंडेंसी टू डेवलप हाइपोक्सीमिया, बट आई वोंट लेबल इट एज हाइपोक्सीमिया. अगर SpO2 नॉर्मली 88 से कम है तो मैं लेबल कर दूंगा. ठीक है. अब अगर मैं 6 मिनट चलाने के बाद, ठीक है, फॉल इन SpO2 3% से ज्यादा फॉल कर रहा है, ओके, एंड इट इज रीचिंग समवेयर अराउंड 90, 92, ठीक है, इस रेंज में पहुंच रहा है तो मैं हाइपोक्सीमिया लेवल करूंगा. एट 93, 94 आई वोंट कॉल इट हाइपोक्सीमिया. समझ में आ गई बात. तो एक क्लिनिकल असेसमेंट है. ऐसा नहीं आप 90 मतलब 100 सैचुरेशन था फिर 97 हो गया तो आप 96 हो गया तो आप कह रहे हो हाइपोक्सीमिया, नहीं.
है ना, क्लिनिकल असेसमेंट है ये, ठीक है। 90 के आसपास अगर फॉल हो रहा है, 92 93 से, तब आपको लग रहा है ना हाइपॉक्सीमिया है, तब आप कहोगे कि 6 मिनट वॉक करके आओ। आप अगर किसी का SpO2 100 है तो वाई विल यू आस्क हिम टू वॉक फॉर 6 मिनट्स? मेक्स नो सेंस, राइट? तो व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग दैट इज हाइपॉक्सीमिया एंड यू नीड टू कंफर्म इट एंड यू डोंट हैव ABG, यू कैन डू दिस, ओके। चलो, and when you will suspect there is hypoxemia, when the saturation is around, let's say, 89 or 90, 91, 92 ऐसे कुछ हो रहा है, ठीक है, then you will suspect hypoxemia, okay। क्लिनिकल असेसमेंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये सब थियोरेटिकल चीजें हैं और दिस आर इक्वली इंपॉर्टेंट, बट क्लिनिकल असेसमेंट का इंपॉर्टेंस यू कैन नॉट डिनाई एट ऑल, ठीक है। व्हेन आई विल डिस्कस सब्सिक्वेंटली ARDS एंड ऑल दैट, इट विल बी मोर हाईलाइटेड, ठीक है, ओके। तो इसके अलावा एक और चीज आपको याद रखनी है कि दीज वेंट्री VQ मिसमैचेस, ठीक है, जो VQ मिसमैच होते हैं, इसके अंदर अगर मैं ऑक्सीजन दूंगा तो दे विल इंप्रूव। क्यों? ट्राई टू अंडरस्टैंड। व्हेन आई टॉक अबाउट पल्मोनरी एम्बोलिज्म फॉर दैट मैटर, तो पल्मोनरी एम्बोलिज्म में देयर इज अ पार्ट ऑफ द लंग दैट इज इन्फेक्टेड, जहां पर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा है। तो मैंने क्या किया, मैंने ऑक्सीजन दे दिया। ऑक्सीजन देने के कारण, बिकॉज ऑफ गिविंग ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज रीचिंग टू द अदर पार्ट्स ऑफ द लंग विच इज नॉट इस्कीमिक, तो दैट इज कंपेंसेटिंग एंड इंप्रूविंग द A- ग्रेडियंट, अंडरस्टैंडिंग दिस, क्योंकि इसके अंदर अ लोकल पार्ट इज इन्वॉल्व, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है, राइट। तो दीज केसेस विल इंप्रूव वेल ऑन ऑक्सीजन, ओके। ये क्लिनिकली नोटेड चीज है। In ARDS, ARDS के अंदर ultimately you have to ventilate the patient. It has little to no improvement on oxygen. Similarly, advanced cases of pneumonia when the entire lung is involved, advanced case of pulmonary edema when the entire lung is involved, little to no improvement on oxygen. ठीक है, तो alveolar defect के अंदर ऑक्सीजन पे अच्छा इंप्रूवमेंट नहीं मिलता है, VQ मिसमैच में ऑक्सीजन पे अच्छा इंप्रूवमेंट मिलता है, ओके। एंड रिमेंबर वन मोर थिंग, दैट इवन दो इंट्राकार्डियक शंट्स, मतलब VSD ASD, इनके अंदर भी सैचुरेशन फॉल होता है, ऑक्सीमिया होता है, ओके। In spite of the fact that they're extrapulmonary causes, they present like intrapulmonary causes, means with high A- A gradient. Okay, high A- A gradient, which is going to not improve, which is not going to improve on oxygen also. इतनी अच्छा इंप्रूवमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा, इंप्रूव होगा बट इतना अच्छा नहीं होगा as much as these conditions will improve. Understood? Okay, sir. Now that our concepts are clear, let me see how much time has passed in discussion of these concepts. Yes, 36 minutes. Good, fair enough. Okay, अब इसके बाद ना चीजें आसान हो जाएंगी, ओके। नाउ विल गो इनटू कोर पल्मोनरी मेडिसिन, ओके। चलो, दिस विल डिस्कस आफ्टर, जस्ट रिमाइंड मी टू कम बैक टू दिस पेज, या फिर यहीं डिस्कस कर लेते हैं, रिवीजन सेशन है, आपको सबको आता ही है, ठीक है। तो डू यू नो व्हाट इज फार्मर्स लंग? यस, फार्मर्स लंग एंड बैगोसॉसिस, दो चीजें होती हैं, बैगोसॉसिस और बिसिनोसिस। टाइप इन द कमेंट बॉक्स, बिसिनोसिस और बैगोसॉसिस क्या होता है। बिसिनोसिस कॉटन होता है या शुगर केन होता है, ठीक है। तो रिमेंबर, इन बैगोसॉसिस एंड इन फार्मर्स लंग, ओके, व्हाट इज द ऑर्गेनिज्म दैट इज इन्वॉल्व्ड? इट इज थर्मोफिलिक एक्टिनोमाइसीट्स। बहुत बार क्वेश्चन आया भाई, ओके। फार्मर्स लंग एंड बैगोसॉसिस के अंदर, फार्मर्स लंग एंड बैगोसॉसिस, okay, I'll just answer your question. Bagosausis is sugarcane. I'm 90% sure, please do confirm. Sugarcane. And bicinnosis is cotton. So bagosausis and your farmer's lung is caused by thermophilic actinomycetes. Okay. Aspergillus fumigatus. Remember, Aspergillus fumigatus is responsible for causing hypersensitivity pneumonitis in case of tobacco chewers, cigarette smokers, and compost factory workers. Aspergillus fumigatus. ठीक है जी. And by the way, thermophilic actinomycetes, it causes two diseases, farmer's lung and bagosausis, and that is the reason it is the most common cause of hypersensitive pneumonitis, which we'll discuss subsequently. ठीक है जी. Okay. All right. अब अगर atypical mycobacteria, ठीक है, remember atypical mycobacteria can lead to something called as hot tub lung disease. हॉट टब लंग डिजीज, तो हॉट टब लंग डिजीज, दिस इज समथिंग दैट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये समवेयर अराउंड द रिच स्टेट ऑफ पीपल के अंदर मिलता है, एटिपिकल माइकोबैक्टीरियम, इट कैन कॉज हॉट टब लंग डिजीज, ओके। एंड बैसिलस सबटिलिस, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फैमिलियल हाइपरसेंसिटिविटी न्यूमोनाइटिस, ठीक है। दोबारा फटाफट रिवाइज करते हैं। एस्परजिलस फ्यूमिगेटस किसके लिए होता है सर? एस्परजिलस फ्यूमिगेटस, एस्परजिलस फ्यूमिगेटस कॉम्पोस्ट वर्कर्स, टोबैको एंड cigarette smokers. And then you have thermophilic actinomycetes, most common cause of hypersensitive pneumonitis, causing farmer's lung and bagosausis. Atypical mycobacteria causes hot tub lung disease, and Bacillus subtilis causes familial HP. This can be a match the following question. Okay, extended match type. Okay, अब आगे बढ़ते हैं. All right, respiratory medicine, first topic of spirometry आता है, ठीक है, दोबारा रिवाइज कर रहा हूँ, कुछ नहीं कर रहा है.
FeV1 अपॉन FVC रेशियो मैंने आपको बताया था कि कम होगा, कितने से कम होगा वो नहीं बताया था, ठीक है। तो अगर कम होगा इसका मतलब क्या है सर, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज है यूजुअली। अगर ज्यादा है या नॉर्मल है तो रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है। दैट इज अ ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग, लेट अस एलॉबरेट इट फर्दर। FeV1 अपॉन FVC रेशियो, ठीक है, इफ इट इज लो, इफ इट इज डिक्रीज्ड, है ना, तो हमें क्या करना है, व्हाट शुड बी माय अप्रोच, लेट अस कम टू दिस लिम एंड देन विल गो टू दिस लिम, ठीक है। So less than 0.7, understand this. This is what I call the Tiffany index, by the way. This is the Tiffany index, FE1 upon FVC. Okay? If it is less than 0.7, okay, then the next step is to give salbutamol inhalation. Okay? Salbutamol सबके पास में पड़ा होता है, ठीक है। सैल्ब्यूटामॉल आप पेशेंट को दोगे, ठीक है। उसके बाद आप चेक करोगे आफ्टर 10 मिनट्स यू विल गिव सैल्ब्यूटामॉल पंप पफ। आफ्टर 10 मिनट्स यू विल चेक अगेन FE1 अपॉन FVC रेशियो, ठीक है। तो हमें पता है कि सैल्ब्यूटामॉल देने के बाद FeV1 शुड इंक्रीज, दिस इज नेचुरल। क्यों, सैल्ब्यूटामॉल ओपन्स द एयरवे, एक्सपिरेशन विल इंक्रीज, ठीक है। सो FeV1 इंक्रीज होता है सैल्ब्यूटामॉल देने के बाद, बट द क्वेश्चन इज कितना हो रहा है, हाउ मच इज इट इंक्रीजिंग। सो इट विल इंक्रीज नो डाउट, बट हाउ मच इज इट इंक्रीजिंग। इफ द इंक्रीज इन FeV1, only FeV1, not talking about the ratio here, if the increase in FeV1 is more than 12%, ठीक है, मैंने पहले FeV1 मेजर किया, उसका 12% से ज्यादा इंक्रीज है, तो इसका मतलब पेशेंट इज एस्थमेटिक। दिस नोन एज एक्सीलेंट ब्रोंको रिवर्सिबिलिटी। इफ इट इज लेस देन 12%, दैट मीन्स द पेशेंट हैज आइदर COPD और bronchiectasis. What is bronchiectasis? Okay, smaller airway का dilation, that is bronchiectasis. Okay, now bronchiectasis and COPD can be assessed based on clinical features. Yes, we'll discuss it subsequently. समझ में आ रही है बात? So अगर Tiffany index is less than 0.7, next step is to give salbutamol and of course note the FeV1 and then measure the FeV1 again after salbutamol in 10 minutes. If the increase in FeV1 is more than 12%, I will call it excellent bronchoreversibility, diagnosis asthma. If it is less than 12%, it will either be COPD or bronchiectasis based on history. COPD history, smoking. Okay, bronchiectasis also smoking, but with infections, recurrent infections that lead to bronchiectasis. Okay, type in the comment box, is bronchiectasis reversible or irreversible? Okay, I'll wait for your answer. Moving on to the right side of the limb, ठीक है। If your FeV1 upon FVC is normal or if it is increased, ठीक है, मतलब 0.7 से 8.5 तक, मतलब 0.85 तक है, ठीक है। ऑलराइट, चलो, तो इसके बाद मैं क्या चेक करूंगा, इसके बाद मैं चेक करूंगा FVC, फोर्स्ड वाइटल कैपेसिटी, ठीक है। मैंने आपको पहले ही बताया था, इन द स्टार्टिंग इटसेल्फ आई टोल्ड यू दैट FVC इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, व्हाट हैपेंस टू द वाइटल कैपेसिटी इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, इट डिक्रीजेस, है ना। अगर FVC इज लेस देन 80% ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू, इसका मतलब क्या है, रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज है सर। इसके बाद व्हाट विल आई चेक, आई विल चेक फॉर रेसिडुअल वॉल्यूम। आई टोल्ड यू दैट रेसिडुअल वॉल्यूम विल फॉल इन रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज बट विल रिमेन नॉर्मल और विल इंक्रीज इन एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल रेस्ट्रिक्टिव लंग डिजीज, ठीक है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इफ रेसिडुअल वॉल्यूम स्टेज नॉर्मल, दैट मीन्स आइदर इट इज एक्स्ट्रा पैरेन्काइमल लंग डिजीज विच कैन इंक्लूड, yes, right, neuromuscular disorders, kyphos scoliosis and diaphragm injury. Simple है ना, everything is understood. Okay, and if residual volume is decreased, it is intrinsic restrictive lung disease. Can be ILD, can be fibrosis, can be UIP, can be NSIP, can be bisonosis, bagasosis, silicosis, pneumoconiosis, whatever it is, ठीक है। Okay, let us talk about DLCO. DLCO का हमें क्या पता है, DLCO के बारे में हमें पता है कि कार्बन मोनोऑक्साइड यूज होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड के ऊपर एक क्वेश्चन आता है सर, इन एनी डिफ्यूजन कैपेसिटी इफ यू वांट टू असेस व्हाट टाइप ऑफ गैस शुड यू यूज अ डिफ्यूजन डिपेंडेंट और अ परफ्यूजन डिपेंडेंट गैस। ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट यू हैव टू यूज अ डिफ्यूजन लिमिटेड गैस। व्हाट डू आई मीन बाय दिस, देखो कई बार क्या होता है, ये मतलब this there is a story behind this, you know, initially carbon monoxide was not preferred to do any investigation because it is a toxic gas basically. तो पहले ट्राई किया गया था कि डिफ्यूजन कैपेसिटी को असेस किया जाए यूजिंग नाइट्रिक ऑक्साइड, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, बट इट टर्न्ड आउट दैट दीज आर परफ्यूजन लिमिटेड गैसेस, मतलब इनका वैल्यू इज गोइंग टू डिपेंड ऑन द परफ्यूजन ऑफ द लंग, विच इज नॉट गुड। आई नीड टू असेस द मेम्ब्रेन, नॉट द परफ्यूजन ऑफ द लंग। डिफ्यूजन कैपेसिटी में मुझे असेस क्या करना है, आई नीड टू असेस द एल्वियोलाई एंड द लेयर्स दैट द एयर हैज टू क्रॉस, राइट। तो अगर इट इज परफ्यूजन डिपेंडेंट ना, तो इट इज नॉट असेसिंग दिस मेम्ब्रेन, वो असेस कर रहा है परफ्यूजन को। तो हमेशा यू हैव टू यूज अ डिफ्यूजन लिमिटेड गैस एंड द बेस्ट डिफ्यूजन लिमिटेड गैस इज कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अल्टीमेटली एमसीक्यू क्या निकला कि DLCO के अंदर वी यूज्ड कार्बन मोनोऑक्साइड बिकॉज इट इज अ डिफ्यूजन लिमिटेड गैस,
ठीक है, ओके। अब डीएलसीओ के अंदर व्हाट डू आई कॉल अ नॉर्मल डीएलसीओ? अ नॉर्मल डीएलसीओ इज एनीथिंग दैट फॉल्स विद इन 75% ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू। ठीक है, अब इसमें लोग गलती करते हैं, क्या गलती करते हैं? ठीक है, क्वेश्चन में लिखा होता है दैट द डीएलसीओ वाज 80% ऑफ प्रिडिक्टेड वैल्यू, तो लोग सोचते हैं कम है, नहीं ये कम नहीं है, नॉर्मल है। ठीक है, और फिर मतलब 80% ऑफ, ठीक है, लेट मी गिव यू क्वेश्चन। ठीक है, FE1 upon FVC ratio is 7 or let's say 6. ठीक है, 6, patient is a chronic smoker, ठीक है, and his DLCO is 80% of predicted value. What is the diagnosis? Bronchoreversibility less than 12%. अब डायग्नोसिस दो हो सकते हैं, COPD नहीं दिया ऑप्शन में दिया है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस और एम्फाइसीमा। क्या मार्क करोगे? अब अगर आपको पता नहीं है कि 80% DLCO इज नॉर्मल, तो आप क्या मार्क करके आ जाओगे? आपको लग रहा है कि कम है, तो आप क्या मार्क करके आओगे? यू विल मार्क द आंसर इज एम्फाइसीमा, जबकि आंसर will be chronic bronchitis. Understand this. Within 75% is normal DLCO. 75% is normal DLCO. ठीक है, ओके। Causes of number 1 decreased DLCO, पहली बात कर चुके हैं सर। नंबर 1 restrictive lung disease, all of them. नंबर 2 all causes of alveolar defects, है ना, हमने डिस्कस किया था ना alveolar defects क्या क्या थे? सीवियर निमोनिया, ARDS, इंटरस्टिशियल लंग डिजीज। ओके, इसके अलावा, ठीक है, इसके अलावा पल्मोनरी एम्बोलिज्म, दिस इज your VQ mismatch. ठीक है, pulmonary embolism also has decreased DLCO, and in COPD I told you emphysema, E for emphysema, E for affected, है ना, DLCO is low. Pulmonary hypertension, okay, pulmonary hypertension also DLCO is low. इन दोनों के ऊपर ना एक स्पेशल पॉइंट है, pulmonary hypertension और embolism के ऊपर। In these cases, okay, in these cases the spirometry, the Tiffany index is normal but DLCO is low. तो अगर Tiffany index low, DLCO low, तो आंसर इज emphysema. अगर Tiffany index normal but DLCO low, तो आंसर can be either fibrosis interstitial lung disease or pulmonary hypertension, pulmonary embolism based on the clinical history. ठीक है, normal spirometry plus decreased DLCO. In fact, in pulmonary hypertension, pulmonary embolism, DLCO is extremely low. Okay, apart from that, anemia. Okay, anemia also causes decreased DLCO. Subsequently, let us just understand the cause of increased DLCO. Again, very important. तो बस इसका उल्टा कर दो सर, अनीमिया का पहले तो पॉलीसाइथीमिया। ठीक है, दूसरी बात, whenever I'm working out, whenever I'm exercising, my body needs more gas to diffuse, so DLCO will increase. For example, exercise. ठीक है, then because of the fact that blood is increased, ठीक है, the perfusion is increasing, the DLCO will also increase. ठीक है, so alveolar hemorrhage and asthma, remember these things. So remember asthma, very important question. Asthma has raised DLCO. ठीक है, तो again a very important feature to differentiate asthma from COPD apart from bronchodivisibility, it is increased DLCO. Understood? Exercise, polycythemia, alveolar hemorrhage. Okay, all right, now let's talk about some clinical questions. Now you will answer. ठीक है, I'll give you some clinical scenarios. Number 1, I got a patient, okay, and I got his chest x-ray done. Patient had respiratory complaints, मैंने सिर्फ उसका chest x-ray करा। chest x-ray मुझे मिल रहा है air bronchogram, ठीक है, I am seeing lobe whiteness, trachea not deviated। यहीं से मेरा आंसर क्या बन गया? That there is a consolidation। ठीक है, अब मैंने क्या किया? मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन किया। क्लिनिकल एग्जामिनेशन पे मैंने ये देखा कि द मूवमेंट्स ऑन द अफेक्टेड साइड, ठीक है, आर गोइंग टू बी डिक्रीज्ड। ओके, रेस्पिरेटरी मूवमेंट्स ऑन द अफेक्टेड साइड आर डिक्रीज्ड। ओके, उसके बाद मैंने परकशन किया सर, परकशन। ठीक है, मैं क्या करूंगा? परकशन करूंगा। फॉर एग्जाम्पल राइट लोब में मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन है, परकशन कर रहा हूं। परकशन पे आई एम गेटिंग अ डल नोट। Understood? Okay, and there is bronchial breathing. ठीक है, bronchial breathing, dull note on percussion, decreased movement on affected side, air bronchogram, low whiteness, trachea not deviated, consolidation. अब ये consolidation can be anything. It can be fungal, it can be bacterial, it can be tubercular, है ना। अब इसके लिए थोड़ी रेडियो पढ़नी पड़ेगी। अब रेडियो में पढ़ाऊंगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि chest x-ray itself is a very big topic, it will take me 1.5 hours. ठीक है, there are some signs of tuberculosis, okay, hilar lymphadenopathy, there are some signs of aspergillosis, right, halo sign, there are some signs of lobar pneumonia, right, air bronchogram, nematocele and all these things. ठीक है, clinical presentation है, we'll talk about it. Consolidation, ठीक है। Next, chest x-ray, trachea is pushed, understand, trachea is pushed and there is whiteness on one side. What is this? This is effusion. Effusion can be, what can it be? It can be blood, it can be fluid, but it cannot be air because whiteness on one side. ठीक है,
Further assessing. Trachea pushed, white nose on one side. Decreased movement of affected side, yes. Stony dull note on affected side, yes. Trachea shifted to opposite side, answer. Pleural effusion, can be pneumothorax also. ठीक है. Next, X-ray. Trachea and mediastinum pulled towards the affected side. खिंच गई है. तो खिंच गई है, कब खिंचेगी सर? Collapse में खिंचेगी. Okay, and white on the affected side, lung has collapsed. Okay, and when I do a clinical assessment, absent breath sounds and the trachea shifted to the affected side. Trachea shift देखना आता है सबको, right? Trachea shifted to the affected side, absent breath sounds, lung collapse. कर लोगे diagnose. Next, X-ray sir, black on one side, mediastinum pushed, answer pneumothorax. खत्म काम. ठीक है. अब टेंशन है, सिंपल है, उसमें थोड़ा और देखना पड़ेगा. सिंपल न्यूमोथोरैक्स के अंदर यू विल सी दिस इज नोन एज विसरल प्लूरल साइन. ठीक है ना. तो न्यूमोथोरैक्स का एक डिफरेंशियल क्या होता है? बुल्लस एम्फाइसीमा, है ना. उसके अंदर नो विसरल प्लूरल साइन, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. सुमेर सर का वीडियो है, गो टू यूट्यूब, सर्च बुल्लस एम्फाइसीमा वर्सेस न्यूमोथोरैक्स. दैट इज अ ब्यूटीफुल वीडियो, प्लीज वॉच दैट. ठीक है. Okay, black on one side, mediastinum pushed, absent breath sounds on one side, hyper resonant, yes, air, hyper resonant, pneumothorax. ठीक है. If pneumothorax, okay, and is associated with something called as some symptoms that I'm going to discuss now. Hypotension, patient is in shock, JVP is raised, tension pneumothorax. Tension pneumothorax, X-ray कराओगे क्या? नहीं कराओगे. ठीक है. हाइपर रेजोनेंट साउंड्स ऑन वन साइड, ट्रेकिया शिफ्टेड, हाइपोक्सिया, हाइपोटेंशन, जेवीपी एलिवेटेड, टेंशन निमोथोरैक्स, इमीडिएटली डू नीडल थोरैकोटमी. ठीक है. नीडल थोरैकोटमी. एब्सेंट ब्रेथ साउंड्स ऑन वन साइड, स्टेथोस्कोप लेके एक बार ऑस्कल्टेट करो, तुरंत पता चलना चाहिए. यू शुड बी एबल टू नो विद इन अ सेकेंड दैट देयर इज नो ब्रेथ साउंड्स एब्सेंट. Okay, that is tension pneumothorax. Immediate needle thoracotomy. Please type in the chat box what is site. Okay, I am not going to tell you the site for needle thoracotomy and even for ICD insertion. You will have to type in the chat box. You will have to comment in the comment section because I know this is something that you already know. Moving on to respiratory failures. Respiratory failures can be broadly divided into 4 types. ठीक है. 1, 2, 3, 4. Number 1, type 1 respiratory failure. This is nothing but hypoxemic. मैंने आपको बताया hypoxemia मतलब decreased oxygen in the blood. Hypoxemic respiratory failure. Why is there decreased oxygen in the blood? Can be due to multiple causes. Can be due to the fact that there is no oxygen in the blood due to anemia. Yes, anemia is a cause of hypoxemic respiratory failure. Other than that, there is severe pneumonia. क्यों? Because of the alveolar problem. There is no diffusion, severe pneumonia. Then there can be ARDS. There can be interstitial lung disease and pulmonary embolism. ठीक है. But remember that COPD is type 2 respiratory failure. Remember there are certain conditions in which there is hypercapnia. For example, obesity. For example, OSA, obstructive sleep apnea. For example, COPD. इन सब केसेस के अंदर हाइपर कैपनिया होता है एंड हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर इज कंसिडर्ड एज टाइप 2 रेस्पिरेटरी फेलियर. अंडरस्टैंड दिस. ठीक है. ओके. अब टाइप 2 के अंदर देयर इज टाइप 2 ए एंड बी इफ आई एम नॉट रॉन्ग. टाइप 2 के अंदर देयर इज टाइप 2 ए एंड बी एंड टाइप 2 ए आई थिंक इज, एक बार कंफर्म कर लेना, पल्मोनरी और एक्स्ट्रा पल्मोनरी कॉज होते हैं, दोनों टाइप 2 के अंदर ही होते हैं. फॉर एग्जाम्पल देयर इज न्यूरोमस्कुलर जंक्शन प्रॉब्लम, लेट्स से ALS एंड स्टेज, उसके अंदर भी तो होगा ना हाइपर कैपनिया, हाइपर कैपनिक रेस्पिरेटरी फेलियर. नेक्स्ट पेज, अभी नेक्स्ट पेज पे आ जाते हैं. ठीक है. हाइपर कैपनिक हाइपर कार्बिक रेस्पिरेटरी फेलियर. निमोनिक एक्सपेंशन इज COPD. ओके. सो सेंट्रल कॉजेस ब्रेन स्टेम इंजरी, यस, है ना, जैसे मैं आपको बताया. नार्कोटिक्स, बिल्कुल. ऑब्स्ट्रक्टिव कॉजेस COPD, फॉरेन बॉडी ऑब्स्ट्रक्शन, न्यूरोमस्कुलर डिजनरेशन, डायफ्राम इंजरी. ओके. Associated with respiratory acidosis. Why? Because remember one thing in life. CO2 corresponds to H plus because CO2 makes H2CO3 which becomes H plus plus CO3 minus, HCO3 minus. ठीक है. तो जितना कार्बन डाइऑक्साइड उतना एसिडोसिस. So it is associated with something called as respiratory acidosis. When we'll discuss ABG, we'll talk about this. ठीक है. Type 3 post operative lung atelectasis. No doubt about it. Easy. आगे बढ़ते हैं. Type 4 is due to shock. Simple. Shock क्यों होगा? Shock can be neurogenic, it can be cardiogenic, it can be different types of shock. Shock मतलब decreased BP, decreased perfusion. ठीक है. ओके. तो शॉक की वजह से टाइप 4 रेस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है. ओके, राइट. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट. रिमेंबर इन रेस्पिरेटरी फेलियर क्लिनिकल असेसमेंट पे, ठीक है, ARDS में है या पेशेंट नहीं है, उसके बेसिस पे यू मैनेज द पेशेंट. ठीक है. आई कैन नॉट टेल यू कि ये स्टेप करो. इट विल बी अ स्ट्रांगली क्लिनिकल अप्रोच बेस्ड answer for that. But remember, when it comes to ventilation, in type 2 respiratory failure, always prefer
always prefer to do non-invasive mechanical ventilation over high flow nasal cannula. Okay, remember this. हमेशा non-invasive for cases like COPD, for cases like obesity, for cases like obstructive sleep apnea. Even in this non-invasive ventilation, we have two types. We have CPAP and we have BiPAP. Which is better? CPAP is slightly better because understand this. What is CPAP? Continuous positive airway pressure. तो CPAP में क्या करते हैं? We give a positive airway pressure in expiration as well as inspiration. But BiPAP में क्या करते हैं? Expiration में we give a negative pressure, inspiration में give a positive pressure. This is better. BiPAP. ठीक है जी. ओके, टाइप 1 में क्या करना है? टाइप 1 में गो फॉर हाइफ्लोनेजल कैनुला फॉलोड बाय इन्वेजिव मैकेनिकल वेंटिलेशन. अंडरस्टूड? ठीक है जी. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. ऑफ कोर्स दिस आफ्टर द फेलियर ऑफ कंजर्वेटिव मेथड्स. लेट्स टॉक अबाउट ARDS. ठीक है, ARDS डायग्नोस करने के लिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दिस. एक्चुअली बोथ ऑल द थ्री आर इंपॉर्टेंट, बट क्वेश्चन के अंदर हमेशा ये चीज देख लेना बस. ठीक है, दो चीजें हैं सर, मतलब एक ही चीज है ये. इसको एलॉबरेट करते हैं. चलो ठीक है, ट्राई टू अंडरस्टैंड. PaO2 अपॉन FiO2. व्हाट इज FiO2? FiO2 इज द फ्रैक्शन ऑफ एयर दैट, मतलब जैसे हवा है, राइट? एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर 21% ऑक्सीजन होता है, बाकी सब गैसेज होती है. तो 20 या 21% इज द FiO2 ऑफ नॉर्मल एयर, है ना? राइट, 20 या 21%, 20% ले लेते हैं. PaO2 के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे ABG कराना है. सपोजिंग मेरे पास ABG की फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है, ठीक है, आप घर बैठ के भी कर सकते हो चीज़. क्या करना है आपको SpO2 लेना है सर पेशेंट का. फॉर एग्जाम्पल यहाँ कोविड पेशेंट इन हाउस. कोविड आई टॉक अबाउट. कोविड के अंदर ना सी कोविड, अब कोविड के ऊपर जो क्वेश्चन आएंगे ना वो दो तरह से आएंगे. या तो इट विल बी अबाउट मैनेजमेंट ऑफ सीवियर कोविड और मॉडरेट कोविड. माइल्ड कोविड कोई नहीं पूछ रहा क्योंकि माइल्ड कोविड की दवाई नहीं है. ओके, एवरी वीक देयर इज अ न्यू मेडिसिन. ठीक है, कोई आई थिंक निर्मा पेराविर करके कुछ आई थी, और एक देयर आर मल्टीपल ड्रग्स दैट आर कमिंग फ्रॉम फाइजर, है ना? तो मॉलनूपिराविर, निर्मा पेराविर, बहुत सारी ड्रग्स हैं. तो वट एवर इज देयर एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट बिफोर गिविंग एग्जाम, बिकॉज जस्ट रिवाइज दैट. ठीक है, बस एक बार ड्रग्स के नाम याद कर लो. कोई नई कॉकटेल आई है उसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है. ठीक है, बट यूजुअली क्वेश्चन किस पे आएगा? या तो सीवियर कोविड पे या मॉडरेट कोविड पे. ठीक है, एंड द मोस्ट कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चन इज अबाउट ARDS. तो कोविड के आने से कोविड इंपॉर्टेंट नहीं हुआ है, ARDS इंपॉर्टेंट हो गया, क्योंकि कोविड में अल्टीमेटली पेशेंट लैंड्स अप इन ARDS एंड द मैनेजमेंट ऑफ कोविड इज मैनेजमेंट ऑफ SpO2. बस आपने अगर पेशेंट को कोविड से SpO2 मैनेज करके निकाल लिया ढंग से तो पेशेंट बच गया. नहीं निकाल पाए तो पेशेंट मरेगा. ठीक है, तो आपको बस पेशेंट का वेंटिलेशन मैनेज करना होना चाहिए, एंड दैट इज वेयर द क्वेश्चंस आर गोइंग टू कम. एंड आई हैव अ डिटेल्ड प्रेजेंटेशन फॉर यू गाइस. इफ वी हैव द टाइम, we'll be able to cover it. Okay, this is the algorithm that I have created from my source. ठीक है, पूरा डिस्कस करेंगे. ओके, yes, now let's talk about ARDS. First thing is PaO2 upon FiO2. ठीक है, सपोजिंग you have a COVID patient and you don't have a ABG facility, वो तो घर पे होती ही नहीं ऑफ कोर्स. तो आपको क्या करना है? आपको SpO2 मेजर करना है और उसको डिवाइड करना है कितने से? 0.2 से. क्यों? क्योंकि FiO2 0.2. ठीक है, इसके बेसिस पे गोइंग टू कैलकुलेट SpO2 upon FiO2 रेशियो. नाउ इफ दिस रेशियो इज मोर देन हाउ मच? 315, 315, देन आई विल say that the patient is not in ARDS. ठीक है, समझ में आ गई बात? अब पेशेंट ऑक्सीजन पे है तो आई टेल यू हाउ टू कैलकुलेट दी FiO2. ठीक है, तो अल्टीमेटली बस यही बात है कि SpO2 के बेसिस पे भी यू कैन से इफ द पेशेंट इज इन ARDS और नॉट. SpO2 अपॉन FiO2 और PO2 ले रहे हो तो 300 के नीचे ARDS बोलना है, और अगर SpO2 ले रहे हो, SpO2 अपॉन FiO2, तो 315 लेना है. ठीक है, नाउ आई विल बी यूजिंग टर्म्स लाइक P/F रेशियो और S/F रेशियो. S/F रेशियो ये होता है, P/F रेशियो ये होता है. ठीक है, फॉर फ्यूचर रेफरेंसेस. ठीक है, बार बार SpO2 PO2 नॉट वेरी कन्वीनियंट टू से. ओके, चलो. सो ARDS के अंदर सबसे पहला क्राइटेरिया, ऑनसेट ऑफ डिस्निया शुड बी अक्यूट, मतलब विद इन 7 days फ्रॉम ऑनसेट ऑफ द डिसऑर्डर. कि जब से डिसऑर्डर स्टार्ट हुआ है ना, उसके 7 days के अंदर द पेशेंट इज डेवलपिंग डिस्निया, सीवियर डिस्निया. ओके, नंबर 1 पॉइंट. नंबर 2, व्हाट इज सीन ऑन चेस्ट एक्सरे एंड CT स्कैन? Bilateral opacities, bilateral multiple opacities, which are not going to be caused by any other by cardiogenic causes. मतलब pulmonary cause ही है, there is some kind of pulmonary cause. Okay, so it is not extra pulmonary cause, मतलब non cardiogenic pulmonary edema होगा सर. ठीक है, cardiogenic pulmonary edema क्या होता है? For example there is MI. ठीक है, for example there is some kind of a cardiac disease, right ventricular failure, तो उसकी वजह से क्या होता है? cardiogenic pulmonary edema होता है. ठीक है, राइट? तो that is about this. So that is about cardiogenic pulmonary edema. That is not
कंसिडर्ड अ कॉज ऑफ एआरडीएस। एआरडीएस के अंदर नॉन कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा होना चाहिए, बायलेटरल ओपेसिटीज होनी चाहिए, अक्यूट ऑनसेट ऑफ डिस्निया विद इन 7 days ऑफ ऑनसेट ऑफ डिजीज, ठीक है, एंड PO2 अपॉन FiO2 रेशियो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। यू कैन ऑल्सो यूज SpO2 अपॉन FiO2, ओके, P/F S/F, ओके। ट्रीटमेंट क्या होता है एआरडीएस का? ट्रीटमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट द अंडरलाइंग कॉज। अंडरलाइंग कॉज क्या हो सकता है? इट कैन बी पोस्ट ऑपरेटिव वाइटल क्राइसिस ऑल्सो, इट कैन बी निमोनिया ऑल्सो, इट कैन बी कोविड ऑल्सो, ठीक है, इट कैन बी एनीथिंग फॉर दैट मैटर। तो ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज, नंबर 1, पल्मोनरी एम्बोलिज्म, पल्मोनरी एडिमा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, यस, ट्रीट द अंडरलाइंग कॉज। नंबर 2, वेंटिलेशन। अब वेंटिलेशन हमेशा सीओपीडी में जैसे ही PO2 अपॉन FiO2 लेस देन 300 जाता है, यू नीड टू स्टार्ट वेंटिलेशन। अब वो इन्वेजिव है, नॉन इन्वेजिव है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, ट्राई टू रिमेंबर कि 150 से 300 तक आप ट्राई करते हो, इन्वेजिव नहीं करो। यू गो फॉर थिंग्स लाइक नेजल कैनुला, हडसन मास्क, नॉन रीब्रीथिंग मास्क, वेंचुरी मास्क, ऑल दीज थिंग्स, ठीक है। बट अगर आप वेंटिलेटर पे आ गए हो, when the S/F ratio is less than, remember this value 196, और P/F ratio is less than 150, तब आपको इन्वेजिव वेंटिलेशन स्टार्ट करनी है, ठीक है। I'll give you the criteria in detail when we discuss COVID and ventilation management, okay, so try to understand this now, ठीक है, okay। So treatment of underlying cause, number 1, number 2, low volume mechanical ventilation, ठीक है। So mechanical ventilation has to be low volume, मैकेनिकल वेंटिलेशन हैज टू बी लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम मतलब 4 से 6, 4 to 6 ml पर किलोग्राम, ओके। ऑलराइट, सॉरी अबाउट दैट, यस। सो लो वॉल्यूम मैकेनिकल वेंटिलेशन, नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम क्या होती है? बेसिकली टाइडल वॉल्यूम एडजस्ट करनी है, ठीक है। नॉर्मल टाइडल वॉल्यूम इज 10 ml पर किलोग्राम, ठीक है। अब क्या होता है ना कि ARDS के अंदर अ पार्ट ऑफ योर लंग 70% यूजुअली इज नॉट फंक्शनिंग, तो अगर आप उसको 10 ml पर किलोग्राम दोगे तो बचे हुए 30% लंग के आप 10 ml पर किलोग्राम दे रहे हो, विच इज वेरी हाई अमाउंट ऑफ वॉल्यूम। तो लंग क्या होगा? फट जाएगा, बेरो ट्रॉमा जिसे हम कहते हैं, दैट विल हैपन। सो वी डोंट वांट दैट टू हैपन, सो व्हाट डू वी डू? वी गिव लो वॉल्यूम टाइडल वेंटिलेशन, लो टाइडल वॉल्यूम वेंटिलेशन विच कैन बी 4 to 6 ml पर किलोग्राम। कहाँ तक जा सकते हो, मैक्सिमम कितना है? ये क्वेश्चन आया था सर GT में, मैं हमेशा 4 to 6 पढ़ के जाता हूँ और मैंने आंसर कर दिया था 6, बट रिमेंबर मैक्सिमम यू कैन टेक अप टू 8, मैक्सिमम इज 8। ये क्वेश्चन आया था ग्रांड टेस्ट में जो मैं गलत करके आया था। आप लोगों से पूछा जाए तो मार्क द आंसर इज 8, बट कन्वेंशनली 4 to 6 इज इनफ, ठीक है। और बढ़ाना है आपके पास अगर इन्वेजिव वेंटिलेशन में तो यू कैन गो फॉर 8, अप टू 8 यू कैन गो, ओके। चलो, दैट इज अबाउट टाइडल वॉल्यूम। सेकंड थिंग इज पीप, पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर। पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, पीप हैज टू बी हाई, ठीक है, हाई पीप, लो टाइडल वॉल्यूम, ओके। एंड देन वी हैव पीप प्लैट, मतलब प्लेटो एयरवे प्रेशर कितना होना चाहिए? less than 30 centimeters of water, ठीक है। So understand, high peep, low tidal volume, low plateau airway pressure, less than 30 centimeters of water, okay। चलो, now इसके अलावा ट्राई टू अंडरस्टैंड, जब भी मैं वेंटिलेटर पे लगाता हूँ ना पेशेंट को, आई डू इट ओनली व्हेन द पेशेंट इज अनस्टेबल, व्हेन द पेशेंट कैन नॉट बी मैनेज्ड। तो इस केस में ना आई हैव टू stop the patient from respiring on his own. I have to stop the patient from intrinsically respiring on his own. तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, मैं पेशेंट को एनेस्थेटाइज कर देता हूँ, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकेज दे देता हूँ, एंड द रेस्पिरेटरी ड्राइव इज समथिंग दैट आई एम गोइंग टू कंट्रोल मैनुअली, ठीक है, ओके। चलो, अपार्ट फ्रॉम दैट यू गिव ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स टू द पेशेंट to maintain the blood pressure and all those things, and you give fluids and electrolytes, okay, fluids and electrolytes as well, maintaining the balance. Apart from that, in type 1 respiratory failure, whenever you are managing COVID, okay, चलो वो बाद में बात कर लेंगे, there is a concept of permissive hypercapnia which we will discuss later on, ठीक है। चलो, सीवियर ARDS के अंदर प्रोन वेंटिलेशन, ठीक है, प्रोन वेंटिलेशन कितनी देर प्रोनिंग करते हैं? यूजुअली 12 to 16 hours a day। देखो, बात समझो, जब मैं वेंटिलेट कर रहा हूँ ना इंट्यूबेट करके, तो पेशेंट इज ऑलरेडी नॉट कॉन्शियस, तो मेरे हाथ में मैं कितनी देर पेशेंट को उल्टा लटका रहा हूँ, कितनी देर पेशेंट को सीधा कर रहा हूँ, ठीक है। तो आई विल कीप द पेशेंट प्रोनेटेड फॉर 12 to 16 hours, ओके, बिकॉज प्रोनेशन इंक्रीजेज द क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन ऑफ द लंग्स। आई विल टेल यू हाउ इन मे बी अनदर लेक्चर, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। प्रोनिंग हेल्प्स इन वेंटिलेशन, कैसे? चलो, सिंपल बात है, ग्रेविटी ले लो आप, ठीक है। तो क्या होता है, whenever you are sitting like this, ठीक है, तो all the fluids in the alveoli gets accumulated downwards, है ना। तो उसकी वजह से एक पर्टिकुलर एरिया ऑफ द लंग स्टॉप्स फंक्शनिंग। अब जब हम ऐसे करते हैं ना, तो सारा का whenever you are pronated, ठीक है, whenever you are pronated, तो सारा का सारा फ्लूइड जो है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो एल्वुलाई जो बंद थे कंप्लीटली वो थोड़े से और खुल जाते हैं, दैट इज अ सिंपल फंडा, ठीक है, ओके। सो प्रोन वेंटिलेशन, लास्ट में एक्मो इज द लास्ट रिसॉर्ट,
विच इज एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मेम्ब्रेन ऑक्सीजनेशन, जब आप लंग का फंक्शन बाहर से करा रहे हो, ठीक है। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। अब इसके अंदर ना ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है, तो I would suggest I make a small video on this later on for 10-15 minutes, क्योंकि what I've written here is slightly insufficient, ठीक है। थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। रिगार्डलेस विल टेक 2 minutes, विल डिस्कस दिस हियर। उसके अलावा आई मेक अ शॉर्ट वीडियो, प्लीज रिमाइंड मी, यू गाइस डोंट रिमाइंड मी, मैं कई बार भूल जाता हूँ कि इसके ऊपर वीडियो बनाना है, उसके ऊपर बनाना है। एक बार रिमाइंडर डाल दिया करो कमेंट सेक्शन में कि just make a video on this, and please if you're not like the stream till now, please do like it, because I know कई बार हम भूल जाते हैं, and we are, you know, sometimes we are engrossed in learning so much. I mean, this is what happens to me कि you know लाइक करना भूल जाते हैं, तो एक बार लाइक कर दो, थोड़ा वीडियो पुश होगा। और my only goal, you know, this is all free, right? I'm providing free content only for the sole reason कि लोगों तक पहुंचे and people are benefited by this, ठीक है। So please do like and share with your friends. Alright, चलो, thromboembolism, I'll make another video, but let's just discuss the gist of it. Thromboembolism, what happens in pulmonary thromboembolism? So pulmonary artery है, उसकी कोई ब्रांच है, उसके ऊपर थ्रोम्बस हो गया, जिसकी वजह से परफ्यूजन नहीं हो पा रहा, वीक मिसमैच, ओके, प्रॉब्लम ऑफ परफ्यूजन, है ना। चलो, तो इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस क्या होनी चाहिए इसकी? रिमेंबर, CT pulmonary angio. CT pulmonary angio is the investigation of choice for pulmonary thromboembolism. But if the patient is pregnant, you do a VQ scan. अब मुझे एक बात बताओ in the comment section, okay, this is slightly tricky question. Tell me, VQ scan के अंदर is there radiation exposure? Okay, is there radiation exposure? ये बात मुझे बताओ comment section में, okay. In pregnancy we prefer to do a VQ scan. Investigation of choice, even though generally in a non-pregnant patient, is CT pulmonary angio, ठीक है। And by the way, pregnancy does predispose to pulmonary thromboembolism. Another problem in pregnancy is that pregnancy के अंदर D-dimer already बढ़ा हुआ होता है, तो that cannot be used as screening test also, ठीक है। That is the problem with pregnancy. Otherwise screening test is D-dimer, है ना। और ये D-dimer हम इसीलिए कराते रहते हैं सर, इसीलिए कराते रहते हैं। एक कोविड का आपको एग्जाम्पल देता हूँ, ओके। इफ यू हैव अ पेशेंट हु सफरिंग फ्रॉम कोविड, ओके, अभी रिकवरी हो गई है, ठीक है, पेशेंट इज रिकवर्ड, बट द पेशेंट स्टार्ट्स टू सडनली डेवलप सम रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, सम चेस्ट पेन यूजुअली, ठीक है। तो चेस्ट पेन डेवलप हो रहा है पेशेंट को, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, डिस्निया डेवलप हो रहा है, ठीक है। और आपको पता है D-dimer वैल्यूज हाई है, आप नॉर्मली D-dimer मॉनिटर करते हो इन कोविड, और आपको पता है हाई लेवल्स है, ठीक है। एंड यू गेट अ ECG डन, you don't get a ECG done, what a normal patient will do, they'll get a ECG done and they'll send you a report, ठीक है। आप भी करा सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, you can do a chest X-ray and all these things, ठीक है। बट फर्स्ट प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन ECG। अब ECG पे आप क्या देखोगे सर? ECG पे what are the findings of thromboembolism? Please answer in the comment section, I'll wait. Or in the end of this particular topic I'll talk to you about the ECG findings as well, ओके। वेस्टरमार्क साइन, बहुत सारे साइंस है, इसलिए मैं सोच रहा डिटेल में कवर करूं, आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, ओके। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, मैनेजमेंट एल्गोरिथम, स्क्रीनिंग टेस्ट, D-dimer, मैनेजमेंट एल्गोरिथम डिस्कस करते हैं। पल्मोनरी थ्रोम्बोएम्बोलिज्म कैन बी ऑफ 3 टाइप्स, मिनिमल, सबमैसिव एंड मैसिव, ठीक है। 1, 2, 3 ग्रेड ऐसे याद कर लो, मिनिमल, सबमैसिव एंड मैसिव। व्हाट डू आई मीन बाय मिनिमल? In minimal pulmonary embolism, the blood pressure and the right ventricular function is normal, ठीक है। blood pressure is normal, right ventricular function is normal. Here what do you give? You give anticoagulation to the patient, anticoagulation, ठीक है। सबमैसिव में क्या हो रहा है? सबमैसिव में पेशेंट इज नॉट इन शॉक, ब्लड प्रेशर इज नॉर्मल, बट राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन इज देयर, तो इसमें क्या करना पड़ेगा हमें? एंटीकोagulation के साथ यू हैव टू मॉनिटर। क्या मॉनिटर करोगे? ब्लड प्रेशर। अगर पेशेंट गोज इनटू शॉक, देन यू विल गो टुवर्ड्स दिस एल्गोरिथम, सिंपल, ठीक है। तो मिनिमल पल्मोनरी एम्बोलिज्म में क्या करोगे? एंटीकोagulants, विच कैन बी वारफेरिन, विच कैन बी हेपारिन, व्हाटएवर यू वांट, ठीक है, एंटीकोagulants। उसके बाद अगर पेशेंट का राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन है, कैसे पता चलेगा? एक्सरे से पता चल सकता है, एको से पता चल सकता है, ठीक है। इफ यू सी राइट वेंट्रिकुलर डिसफंक्शन, स्टार्ट द पेशेंट ऑन एंटीकोagulants प्लस क्लोज मॉनिटरिंग, बस। अब अगर थ्रोम्बोलिसिस करना है तब का, व्हेन डू यू डू थ्रोम्बोलिसिस? व्हेन द पेशेंट गोज इनटू शॉक और व्हेन द पेशेंट हैज अ लो बीपी, ठीक है, तब आप थ्रोम्बोलाइज कर देते हो, ठीक है। चलो, तो दिस इज नोन एज बाय द वे मैसिव पल्मोनरी एम्बोलिज्म, ठीक है। सो व्हाट आई मीन बाय शॉक? व्हेन द सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर इज लेस देन 80, दिस इज शॉक। तब आपको तुरंत यू विल हैव टू थ्रोम्बोलाइज, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। बट बिफोर दिस डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, अंडरस्टैंड, तुरंत थ्रोम्बोलाइज नहीं करोगे, पहले स्टेबलाइज करोगे। रिमेंबर, कभी भी ना इमरजेंसी में, है ना, जैसे MI है, तो MI के अंदर सीधा कैथ लैब मत ले जाओ, पहले स्टेबलाइज करो यार, तुम स्टेबलाइज करो फ्लूइड्स के साथ, ओके। सो प्लीज स्टेबलाइज द ब्लड प्रेशर। ऐसा नहीं कैथ लैब लेके जाओ, रास्ते में मर गया, नहीं, स्टेबलाइज द पेशेंट फर्स्ट, ठीक है।
Okay, so IV fluids, number 1. Number 2, vasopressors, ultimately BP up करना, ठीक है, तो this for maintaining the blood pressure. Okay, you will give 500 ml normal saline plus vasopressors plus anticoagulants, ठीक है. उसके बाद definite treatment, the patient becomes stable, then you go for thrombolysis. If the patient is having contraindication to thrombolysis, okay, then you go for surgical embolectomy, ठीक है. आई थिंक मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक के ऊपर हमने थोड़ा कम डिस्कस किया है, उसका भी एक सेक्शन प्लीज रिमाइंड मी इन द कमेंट सेक्शन टू टेक स्मॉल सेक्शन ऑन द मैनेजमेंट ऑफ स्ट्रोक एंड एमआई, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं हुआ इसलिए. ओके, लेट्स टॉक अबाउट निमोनिया नाउ. अब निमोनिया के अंदर अंडरस्टैंड, मैं बस कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म की बात करूंगा, कर्व 65 क्राइटेरिया के बारे में बात करूंगा, एंड दैट इज इट, ठीक है. चलो, निमोनिया कैन बी डिवाइडेड इनटू, देखो पहले तो टिपिकल एटिपिकल में बात कर लेते हैं, ठीक है. चलो, we'll just go according to the chart itself. Pneumonia can be divided into community acquired and nosocomial. Nosocomial मतलब हॉस्पिटल acquired, ठीक है. हॉस्पिटल के अंदर हुआ तो nosocomial. हॉस्पिटल के अंदर कहाँ हुआ, वेंटिलेटर में हुआ या नॉर्मल हॉस्पिटल के वार्ड में हुआ, ठीक है. बेस्ड ऑन दैट इट कैन बी डिवाइडेड. सो कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया वर्सेस नोसोकोमियल निमोनिया. कम्युनिटी एक्वायर्ड निमोनिया फर्दर डिवाइडेड इनटू टिपिकल वर्सेस एटिपिकल, ठीक है. टिपिकल वर्सेस एटिपिकल. अब बात समझना, ठीक है. देयर इज अ रिलेटिव ऑफ माइन एंड you know he's very old in age. So what happened was कि he was asymptomatic basically. Patient को बस fever हुआ था, he only had fever, okay, no respiratory distress, no cough, nothing, just fever, ठीक है. बात समझ रहे हो, fever था patient को बस, ठीक है. तो understand this, कई बार डायरिया भी हो जाता है, you know, in old age patients atypical pneumonia can present with low grade fever plus diarrhea, ठीक है. आपको लग रहा है टाइफाइड है कुछ है, but always get a X-ray done. Because old age patients atypical pneumonia can present in different ways, even with diarrhea and fever. Understand this, okay. Old age patients के अंदर the body goes little bit haywire, it does not typically present, ठीक है. तो always get a chest X-ray done, और अगर आपको cause नहीं मिल रहा है then you can get a CT also done, and that's what we did, and then we found out that there was aspergillosis in that patient, ठीक है. डिस्कस करेंगे सब, ओके. चलो, सो टिपिकल निमोनिया एंड एटिपिकल निमोनिया. टिपिकल निमोनिया की अगर बात करें, typical pneumonia will always have high grade fever, okay, high grade fever. Most common cause streptococcus, H influenza and moraxella. And typical pneumonia also known as lobar pneumonia, one lobe is affected. Atypical pneumonia, it is diffuse type of involvement, ठीक है. Okay, low grade fever, dry cough, diarrhea for long duration. Most common mycoplasma. Other causes can be Legionella, viruses, chlamydia. For example, COVID also causes atypical pneumonia, ठीक है. सेम थिंग ना, लो फीवर हो सकता है, ड्राई कॉफ हो सकता है, डायरिया हो सकता है लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए. वायरसेस, क्लेमिडिया, लीजोनेला एंड माइकोप्लाज्मा. लीजोनेला एसोसिएटेड विद लीजोनियस डिजीज, किसके साथ एसोसिएटेड होती है, एसी इवेंट्स के साथ. माइक्रोबायोलॉजी में पढ़ेंगे, ठीक है, व्हेन वी डिस्कस दीज इन्फेक्शंस इन डिटेल. नोजोकोमियल, हॉस्पिटल एक्वायर्ड, वेंटिलेटर एसोसिएटेड. क्वेश्चन आता है वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया का मोस्ट कॉमन कॉज बताओ, या फिर क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. इसका आंसर मुझे रटा हुआ है, क्लेप्सियला. क्लेप्सियला इज नॉट अ कॉज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. हमेशा ऑप्शन में होता है, हमेशा आप सोचते हो क्लेप्सियला तो हो गई, बट इट इज नॉट देयर, ओके. सो अंडरस्टैंड, वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया रेयरेस्ट कॉज पूछ लेंगे, विच द फॉलोइंग इज नॉट अ कॉमन कॉज ऐसे पूछ लेंगे, ठीक है. सो व्हेन आई टॉक अबाउट वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया, व्हेन द पेशेंट इज बीइंग वेंटिलेटेड, ओके, नंबर 1, इट विल ऑलवेज अकर आफ्टर 48 hours of ventilation. Ventilation के 48 hours बाद the patient develops a pneumonia. Most common cause overall is Pseudomonas. Okay, Pseudomonas overall most common cause. अब अगर मैं डिवाइड करूँ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया को, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू अर्ली एंड लेट. अर्ली के लिए द कॉजेस कैन बी स्ट्रेप्टोकोकस, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, जस्ट लाइक अ टिपिकल निमोनिया, वेंटिलेटर एसोसिएटेड. लेट के अंदर इट इज Pseudomonas मोस्ट कॉमन. अपार्ट फ्रॉम दैट मर्सा एंड एक्टिनेटोबैक्टर, ठीक है. क्वेश्चन आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेयरेस्ट कॉज ऑफ वेंटिलेटर एसोसिएटेड निमोनिया. वैप ऑप्शंस, एक्टिनोबैक्टर ऑप्शंस, मर्सा ऑप्शंस, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड ऑप्शंस क्लेप्सियला, ठीक है. यूजुअली क्या मार्क क्या आते हैं लोग, एक्टिनेटोबैक्टर. एक्टिनोबैक्टर नहीं कॉज करेगा, बट एक्टिनोबैक्टर कॉज करता है. आंसर इज क्लेप्सियला. क्लेप्सियला डज नॉट कॉज, रिमेंबर दिस, ओके. आगे बढ़ते हैं, है ना. चलो, यस, नो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. रेड करेंट जेली स्पूटम किसमें होता है, क्लेप्सियला में, है ना. रेड और ब्राउन रस्टी स्पूटम, स्ट्रेप्टोकोकस, ठीक है. टिपिकल निमोनिया, लोबार, एयर ब्रोंकोग्राम, न्यूमेटोसील, all these things. And whenever I see on a chest X-ray, okay, the patient is an alcoholic and there is a cavity with air fluid level. Answer is lung abscess. Lung abscess due to aspiration. Okay, what is the management? Management is, remember, clindamycin, drug of choice for primary lung abscess. Primary lung abscess is clindamycin, because the most common cause for a primary lung abscess is oral anaerobes.
पेशेंट दारू पीता है, दारू पीने के साथ साथ एस्पिरेट कर लेता है। क्या एस्पिरेट करता है? जो ओरल कैविटी के अंदर एनारोबिक ऑर्गेनिज्म होता है उनको एस्पिरेट करता है। फॉर दैट द ड्रग ऑफ चॉइस बिकम्स क्लिंडामाइसिन, okay, for a primary lung abscess. If it is a secondary lung abscess मतलब patient को typical pneumonia था which converted into an abscess, then you'll have to treat according to the cause. It can be streptococcus, it can be pseudomonas. ठीक है, चलो streptococcus, staphylococcus, whatever you want. ठीक है, complication of pneumonia. Next, curve 65. Curve 65. Remember, C for confusion, U for blood urea nitrogen, R for respiratory rate, B for blood pressure, 65 is age. ये बिल्कुल भी नहीं बोलना है दिस शुड बी ऑन योर फिंगर टिप्स। यू नो देयर आर सर्टन थिंग्स क्लिनिकली वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, लाइक योर क्या बोलते हैं, कौन सा था वो, सर्च क्राइटेरिया शुड बी ऑन योर टिप्स। ओके, कर्व 65 शुड बी ऑन योर टिप्स, ठीक है। सो दीज थिंग्स शुड बी ऑन योर टिप्स यार, बिकॉज दिस इज हाउ यू विल नो वेदर द यार सेप्सिस स्कोर, यू नो सर्स, यू नो इनके बिना काम नहीं चलेगा। दिस इज वॉट विल टेल यू व्हेन द पेशेंट इज इन शॉक। अब शॉक में तो हॉस्पिटलाइज करना है आपको, अगर सर्स नहीं आता और अगर आप बीपी नहीं देख रहे हो एक पेशेंट का और अगर आप वाइटल्स नहीं मॉनिटर कर रहे हो, ठीक है, तो बहुत दिक्कत हो सकती है। सो रिमेंबर दीज थिंग्स ऑन योर टिप्स। कर्व 65 वेरी इंपॉर्टेंट। सी फॉर कंफ्यूजन मतलब GCS इज अल्टर्ड, ठीक है। यू फॉर ब्लड यूरिया नाइट्रोजन लेस देन 7, सॉरी नाइट्रोजन बढ़ेगा ना, यस, मोर देन 7 मिलीमोल्स है ना, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। आर फॉर रेस्पिरेटरी रेट बढ़ेगी कितने से ज़्यादा, व्हेन डू आई कॉल इट, मोर देन 22, सॉरी मोर देन 30, sorry about this, respiratory rate more than 30, okay. And B for blood pressure less than 90 systolic, less than 60 diastolic, 60 upon 90 से कम blood pressure. So this is curve and 65 is age more than 65. so अगर curve 65 के बेसिस पे अगर स्कोर 3 to 5 आ रहा है, 3 से 5 के बीच में, तो पेशेंट शुड बी शिफ्टेड टू ICU, अंडरस्टैंडिंग दिस, ICU। अगर 2 स्कोर आ रहा है, okay, for example age is 65 and respiratory rate is let's say 35 39, ठीक है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, स्टेनोक्लेडोमास्टॉइड कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, नेजल फ्लेयरिंग है, रिब इंटरकॉस्टल, दीज आर थिंग्स यू हैव टू सी क्लिनिकली, ठीक है, मतलब पेशेंट इज हैविंग सीवियर डिस्निया, प्लीज हॉस्पिटलाइज द पेशेंट, हॉस्पिटल वार्ड, ओके। एंड इफ द पेशेंट इज हैविंग लो रिस्क, home isolation, just curve 65 1, for example there is an old age patient with pneumonia, हॉस्पिटल में मैनेजमेंट करने की जरूरत नहीं है, मैनेज एट होम, 0 मैनेज एट होम। एज सुन एज इट गोज टू 2, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ रही है या ब्लड प्रेशर कम हो रहा है, ओके, कंफ्यूजन हो रहा है, प्लीज हॉस्पिटलाइज द पेशेंट। इफ इट इज मोर देन 2, शिफ्ट द पेशेंट टू ICU, सिंपल, ठीक है, चलो। Alright, some features about asbestosis and sarcoidosis. Yes, asbestosis के अंदर what do you see on biopsy, on bronchoscopy, okay, on bronchoalveolar lavage, I see ferruginous bodies. Ferruginous bodies characteristic of ऐसी दिखती है, so ferruginous bodies. Let me draw for you brown color. Yes, ऐसी दिखती हैं ferruginous bodies. Ferruginous bodies characteristic of asbestosis. ठीक है, sarcoidosis के अंदर you will see elevated ACE, angiotensin converting enzyme levels and hypercalcemia. ठीक है, इंपॉर्टेंट फीचर्स। आगे बढ़ते हैं सर, कोविड। अब कोविड क्या, कोविड आई थिंक दिस इज द लास्ट टॉपिक विल डिस्कस, बिकॉज इसके बाद ना आपको ARDS का वो एल्गोरिदम और प्रोटोकॉल वो समझा दूंगा, उसके बाद थोड़ा सा बचेगा, विल कवर दिस इन द नेक्स्ट सेशन, ओके। तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आई जस्ट कवर कोविड फॉर नाउ, ओके गाइस। तो pulmonary medicine is almost over. By the next session we'll be able to complete it. Let me see how long has it been, let me check. Yes, it's only been 1 hour. I'll try to complete as much as we can. 2 घंटे खींच लें इसको। I think a 2-hour stream is decent enough. Yes, okay guys, let's start with COVID now, ठीक है। लेट मी जस्ट टेक अ मोमेंट, ओके, थोड़ा ब्रेक भी हो जाएगा, 1 घंटे तक हम पढ़ ही रहे हैं, तो मैं थोड़ा अपने यूट्यूब चैनल के बारे में बता देता हूँ। सो दिस इज माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर हाउसेनबर्ग स्टार्क। सो इफ यू लॉग इन टू इट यू विल सी दिस आइकॉन ऑन द लेफ्ट साइड, ऑन द राइट साइड सॉरी, विच इज द लिंक टू माई इंस्टाग्राम। अब इंस्टाग्राम पे अगर आप जाओगे, वाई मैं टेलिंग यू टू गो टू माई इंस्टाग्राम, व्हेन यू गो टू माई इंस्टाग्राम, ठीक है, मैंने आपके लिए कंटेंट अपलोड कर रखा है पहले। You know, I've been teaching, not teaching actually, I've been, you know, studying like this. I've been, you know, I love to discuss and study. तो मैं हमेशा डिस्कस करके स्टडी करता हूँ। तो whenever I study, I used to live stream on my Instagram. ठीक है, so as you can see, there are so many past live streams. Okay, and if you have seen my previous videos on my 3 golden notebooks, that is the only source that I revised for the last 6 months. तो वो सब यहाँ पर अवेलेबल है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है।
तो प्लीज़ गो थ्रू इट इफ़ यू वांट. आई मीन बायोकेमिस्ट्री इज हियर, ठीक है. So yeah, I mean, go through it, right? And I'll try to cover it on my YouTube channel as well. But if you want to just check out some content, there is some motivational talks as well here, which I just did after my NEET exam was over, after the results, between the results, coming out and all these things. तो just some chit chat, ठीक है. तो ये सब चीज़ें हैं. And apart from that, if you like the live stream till now, please do you know share with your friends. यार, I just want this content to be available to as many people as possible, ठीक है, so that people are benefited, ठीक है. And short समय में cover करना, and these things are, this is something that got me my rank. And I would like more people who are deserving to get into their dream colleges and seats, ठीक है. और मुझे लगता है ना कि ये जो मेडिकल प्रोफेशन है, ये सच अ नोबल प्रोफेशन. एंड इसमें कंजूसी नहीं करनी चाहिए आपको ज्ञान बांटने में, बिकॉज एनीथिंग दैट आई से, एनीथिंग दैट एनी टीचर टीचर्स, फ्रॉम एनी टीचर, इफ यू लर्न एंड इफ यू आर एबल टू अप्लाई इट एंड इफ यू आर एबल टू सेव वन लाइफ, राइट, तो आप समझो ना यार, आपने किसी की ज़िंदगी बचाई, ठीक है. और ऐसी चीज़ें ना, इन चीज़ों में एक तो वर्दी लोगों को आना चाहिए बेस्ड ऑन मेरिट, ठीक है. तो आई डोंट वांट टू रैंट अबाउट थिंग्स. तो आई मीन इट्स अबाउट लाइफ यार, यू कैन नॉट प्ले विद लाइफ्स ऑफ पीपल, ठीक है. तो जो डिजर्व कर रहा है, जिसको आता है, जिसको जिसको पढ़ने में इंटरेस्ट है, उसको आप थोड़ा पुश करो, ठीक है. तो मुझे ऐसा लगता है कि imparting medical education and discussing things, it is very noble. And it is something that this profession, I sometimes underestimate the things that it comes with. I mean, you sometimes try to look at it very leniently, but life hai, it is about the life of a patient. There is nothing more important than his own life for a person, and you're the one who's going to make sure that the person stays alive, okay. And इसके अंदर ना मुझे लगता है कि the best of the best, okay, and the people who are genuinely having this desire of serving the society. And this is, and there is a reason. I mean, कि डॉक्टर्स की आज भी रिस्पेक्ट है. तुम कितना कह लो कि देर आर सम things happening around assaults and the government not listening, the counseling getting delayed, reservation getting increased, but डॉक्टर्स की रिस्पेक्ट है, थी और हमेशा रहेगी, ठीक है. और अगर आप अच्छे डॉक्टर बनते हो ना, तो डेफिनेटली रहेगी. अच्छे डॉक्टर से मेरा क्या मतलब है? अच्छे डॉक्टर से मेरा मतलब है कि somebody who is, there's only one criteria I have for a person who's a good doctor. For me, a person who's a good doctor is somebody who never gives up, ठीक है. वो उसको अगर इफ इज़ नॉट एबल टू डायग्नोज अ केस और मैनेज अ केस, उसको चाहे वो 50-60 साल का हो ना, तो भी ही शुड हैव द ज़ील टू रीड अबाउट दैट केस. एंड दैट इज़ व्हाट इज़ अ गुड डॉक्टर फॉर मी, ठीक है. तो एक ज़ील होनी चाहिए, एक पैशन होना चाहिए पढ़ने का, ठीक है. चलो आगे बढ़ते हैं, बहुत हो गई बकवास, चलो ठीक है. लेट्स स्टार्ट विद कोविड. तो कोविड में मैंने आपको बताया कि कोविड के अंदर क्वेश्चंस आपके पास दो तरह से आएंगे, या तो मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट एंड सीवियर कोविड, या तो दे विल टॉक अबाउट एआरडीएस, पेशेंट ऑफ कोविड मैनेज इन एआरडीएस, ठीक है. और दे विल आस्क यू अबाउट कोरैट स्कोर, ठीक है, और योर सीटी सीवियरिटी इंडेक्स, ठीक है. ये चीज़ें आ सकती हैं. अब कोरैट्स के लिए विल डिस्कस इट इन वेरी शॉर्ट, बट आई वुड सजेस्ट देयर इज अ वीडियो ऑन अनअकैडमी ऐप by Zainab ma'am, and in that she has covered all the RAD scores, CORADs, BIRADs, PIRADs, TIRADs, everything in one video. It is a very good video to watch, ठीक है. So do watch that. Midnight Express का कोई session है, so yeah, definitely do check it out. Okay, so first we'll talk about the basics. अब there are definitely recent updates, there are recent guidelines, but this ICMR guidelines, it has not changed for a very very long time, ठीक है. और इसके अंदर ना कोई डॉक्सीसाइक्लिन का रोल है, ना आइवरमेक्टिन का रोल है, ना फाविपिराविर का रोल है, ना अब जो नई नई आ रही है ना मोलनुपिराविर और ये सब चीज़ें, ये भी नहीं है अभी तक आईसीएमआर के अंदर. आईसीएमआर अभी तक वो एचसीक्यू पे चल रहा है. आईसीएमआर अभी तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन पे चल रहा है, ठीक है. तो आईसीएमआर इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट. क्वेश्चन नहीं आएगा माइल्ड कोविड पे, ठीक है. माइल्ड कोविड मैनेज करना किसी को नहीं आ रहा है, कोई दवाई नहीं है, कोई कुछ नहीं है. मैनेजमेंट ऑफ मॉडरेट टू सीवियर कोविड इज वेयर वी हैव टू प्ले अ रोल. ओके, चलो. तो पहले तो माइल्ड कोविड क्या है, मॉडरेट क्या है, सीवियर क्या है, सबको पता है, काफ़ी टाइम से चल रहा है. दो चीज़ें देखनी है, रेस्पिरेटरी रेट और एसपीओ, ठीक है. इन माइल्ड कोविड, what does the patient have? Patient has clinical features, upper respiratory tract infection, fever, diarrhea, everything, ठीक है. कुछ भी हो सकता है कोविड में. So
बट द पेशेंट इज स्टेबल, मतलब SpO2 इज more than 94 and respiratory rate is less than 24. ठीक है, so remember two numbers. ठीक है, entire 2020 and 2021 दो ही नंबरों पे चला था, 94 और 24. SpO2 more than 94, respiratory rate less than 24. ठीक है, that is mild COVID, है ना. And during COVID, I read up so much and I was so interactive on different platforms and अच्छा लगा था, I mean, to actually contribute to the society. ठीक है, तो SpO2 94, respiratory rate 24. ठीक है, and that is where I got all this ARDS management algorithms and everything. That is when I studied. तो उस टाइम के मेरे नोट्स थे, I'll just summarize that. ठीक है, okay. So let's talk about severe COVID here. Okay, severe moderate मतलब SpO2 less than 94, respiratory rate more than 24, 94 moderate COVID. यहाँ पे क्या करना है, यहाँ पे एडमिट करना है पेशेंट को. ठीक है, ओके. सीवियर कोविड का बोलना है ARDS मतलब P/F रेशियो या फिर S/S रेशियो, S/F रेशियो कितना 300 या 315 से कम, दैट इज ARDS. ठीक है, ओके. SpO2 लेस देन 90, रेस्पिरेटरी रेट मोर देन 30. ठीक है जी, 90 30 94 24 बस. ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं. मैनेजमेंट क्या है सर? माइल्ड कोविड का होम आइसोलेशन. ठीक है, HCQ लिखा हुआ है, आजकल कोई नहीं दे रहा. ओके, राइट. एंड HCQ इज ओनली गिवन फॉर हाई रिस्क पेशेंट्स नाउ. ठीक है, एम्स एल्गोरिथम है, वो आपको पढ़ना है तो INI-CT के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, बट नोबडी इज आस्किंग यू दिस, नोबडी विल आस्क यू कि यार माइल्ड कोविड का मैनेजमेंट क्या, नोबडी विल आस्क यू. ठीक है, ओके. मॉडरेट कोविड के अंदर यू विल नाउ हैव टू एडमिट द पेशेंट. अब आपका रोल आता है. ठीक है, यू हैव टू स्टार्ट द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन. Okay, I'll discuss the step-up algorithm after this. Start the patient on steroids. Okay, steroids, oral, anticoagulants, oral. ठीक है, कंसिडर रेमडेसिविर. कन्वल्सेंट प्लाज्मा का कोई रोल नहीं है. ठीक है, रेमडेसिविर आप कंसिडर कर सकते हो. ठीक है, ऑलराइट. ARDS में क्या करना है? ARDS में ठीक है, हाई फ्लो नेजल कैनुला या फिर वेंटिलेशन लिख देता हूँ मैं, इंस्टेड ऑफ हाई फ्लो नेजल कैनुला वेंटिलेशन. ओके, उसके बाद एडमिशन इन दी ICU एंड व्हाट आर द ड्रग्स दैट यू विल गिव? एंटीकोगुलेशन इंट्रावीनस, रेमडेसिविर एंड स्टेरॉइड्स. ठीक है, स्टेरॉइड्स, रेमडेसिविर एंड एंटीकोगुलेशन. उसके अलावा यू कैन कंसिडर योर टोसिलिजुमाब, इंटरल्यूकिन 6 एनालॉग. ओके, मैनेज एज पर एज ARDS. ठीक है, तो ये जो लाइन लिखे हैं ना बहुत इंपॉर्टेंट. अब हम आ जाते हैं ARDS के मैनेजमेंट के ऊपर. दिस इज वेयर द क्वेश्चंस विल कम एंड दिस इज नॉट स्पेसिफिकली फॉर कोविड, दिस इज एप्लीकेबल एवरीवेयर एल्स एज वेल. ठीक है, ओके. एंटीबायोटिक्स कब देनी है? व्हेन यू आर सस्पेक्टिंग अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन. अब मुझे कोई कमेंट सेक्शन में प्लीज कमेंट करके बताओ कि इन कोविड व्हेन विल यू सस्पेक्ट अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, व्हाट इज अ मार्कर? ठीक है, द मार्कर इज प्रोकैल्सिटोनिन. प्रोकैल्सिटोनिन इज अ मार्कर फॉर बैक्टीरियल इन्फेक्शन. ठीक है, प्रोकैल्सिटोनिन is the best marker. CRP बढ़ा हुआ आएगा, ESR बढ़ा हुआ आएगा, even in COVID and even in bacterial infections. But your procalcitonin is what will tell if there is a super added bacterial infection or not. ठीक है, अगर है तो give antibiotics. Okay, चलो. Now let me discuss with you the management algorithm of these things. ठीक है जी, step up algorithm for COVID-19 ARDS. ठीक है, अब समझते हैं बात को कि मुझे कब ऑक्सीजन स्टार्ट करना है, वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, तो कोविड का पेशेंट है, ऑक्सीजन कब स्टार्ट करना है? सिंपल बात है, माइल्ड कोविड में कुछ नहीं करना है, ऑक्सीजन नहीं देना. सिंपल बात है ना. ठीक है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, रेस्पिरेटरी रेट मेंटेन्ड है, GCS स्टेबल है, ब्लड प्रेशर स्टेबल है, क्यों देना ऑक्सीजन? नहीं देना. ठीक है, मैनेज कंजर्वेटिवली. ओके, वो बाबा रामदेव की दवाई आती है वो दे दो. ठीक है, तो मैनेज कंजर्वेटिवली. देन व्हाट डू यू डू? When do you start oxygen? You start the oxygen in moderate COVID. Moderate COVID मतलब SpO2 less than 94, respiratory rate more than 24 या फिर 20 to 24. अभी रेस्पिरेटरी रेट ना इतना एडमेंट, इतना फर्म नहीं होना चाहिए इसके ऊपर. विद रिस्पेक्ट टू MCQ ऑफ कोर्स यू कैन बी लाइक दैट, बट अगर मुझे वो कह रहा है कि रेस्पिरेटरी रेट इज 20 to 24 अलॉन्ग विद नेजल फ्लेयरिंग, स्टर्नोक्लीडोमास्टॉइड कॉन्ट्रैक्शन एंड रिब रिसेक्शन, तो यू नो आई विल लेबर दिस एज डिस्निया, क्योंकि क्लिनिकली इट इज़ वेरी अबेंडेंट, इट इज़ वेरी एविडेंट कि पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, तो मैं पेशेंट को दूंगा ऑक्सीजन. ऐसा नहीं है कि यू विल वेट फॉर द रेस्पिरेटरी रेट टू इंक्रीज मोर देन 24. नो, अगर SpO2 फॉल कर रहा है लेस देन 94, रेस्पिरेटरी रेट 20 to 24 के बीच में है, यू कैन स्टार्ट ऑक्सीजन. ठीक है, कैसे स्टार्ट करोगे? फर्स्ट स्टेप ओके, फर्स्ट इंस्ट्रूमेंट और फर्स्ट थिंग दैट यू विल यूज इज योर नेजल कैनुला. ठीक है, यहाँ पर लिखा है नेजल कैनुला, दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू विल यूज. ठीक है, अब नेजल कैनुला के अंदर यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मैक्सिमम फ्लो रेट. अब दो चीजें हैं सर, व्हेन एवर यू आर डिस्कसिंग वेंटिलेशन देयर आर टू थिंग्स, वन इज योर FiO2, सेकंड थिंग इज योर फ्लो रेट. ठीक है, दोनों एक दूसरे पे डिपेंडेंट है भी और नहीं भी. ठीक है, आई विल टेल यू हाउ. फॉर एग्जांपल
आई टेक अनदर पेज हियर, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, in my environmental air, what is the amount of oxygen that there is there? 20%. ठीक है. अब जैसे जैसे मैं उसका ऑक्सीजन चालू करता हूँ और नेजल कैनुला, बिकॉज दैट इज द फर्स्ट थिंग दैट यू अप्लाई. ठीक है. तो नेजल कैनुला पे ऑक्सीजन चालू कर रहा हूँ मैं. व्हेन आई स्टार्ट ऑक्सीजन एट 1 लीटर, व्हाट इज FiO2? 4%. 4% इंक्रीज होगा, मतलब 1 लीटर पे इट बिकम 24%. 2 लीटर्स पे 28. ऐसे करते करते रिमेंबर नेजल कैनुला आई कैन गिव मैक्सिमम फ्लो रेट अप टू 6 लीटर्स. तो मैक्सिमम FiO2 कितना डिलीवर हो सकता है? 44%. समझ में आ रही है बात? ठीक है. तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, फ्लो रेट वर्सेस FiO2. अब मैंने आपको क्यों बोला कि FiO2 मे और मे नॉट डिपेंड ऑन योर फ्लो रेट? Because you have to understand something. There is something called as a Venturi mask. Venturi mask is something that is used in a high flow system. ठीक है. मतलब 40 to 60 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन जा सकता है इसके थ्रू. बट रिमेंबर, इसका जो FiO2 होता है ना, ठीक है, इट इज लोअर दैन समथिंग कॉल्ड एज NRBM, नॉन रीब्रीदिंग मास्क. नॉन रीब्रीदिंग मास्क इज नॉट अ हाई फ्लो सिस्टम. इसके अंदर 10 से 15 लीटर पर मिनट के रेट से ऑक्सीजन डिलीवर हो सकता है. इट इज नॉट एनीवेयर क्लोज टू अ हाई फ्लो सिस्टम, बट स्टिल द FiO2 इज हाई. समझ में आ रही है बात आपको? ठीक है. तो ये सब बातें आपको ध्यान में रखनी है. ठीक है. तो पहले तो एडमिट कब करना है पेशेंट को? जब 94 से कम सैचुरेशन हो जाए और रेस्पिरेटरी रेट इज मोर देन 24. ठीक है. ऑक्सीजन कब स्टार्ट करना है? सेम थिंग, बट रेस्पिरेटरी रेट डोंट बी टू रिजिड अबाउट इट. इफ देयर आर अदर एक्सटर्नल साइंस, क्लिनिकल साइंस, स्टार्ट द पेशेंट ऑन ऑक्सीजन. ठीक है. किससे स्टार्ट करोगे? नेजल कैनुला से. मैक्सिमम फ्लो रेट 1 to 6 लीटर्स. मैक्सिमम FiO2 आई ऑलरेडी टोल्ड यू 24 to 44%. अब अवेक प्रोनिंग का क्या कॉन्सेप्ट है? अवेक प्रोनिंग, देखो अवेक प्रोनिंग के ना दो रीजन है. एक तो पहले से आप मतलब आपका वेंटिलेशन बढ़ता है. दूसरा, आप पेशेंट को रेडी कर रहे हो, तैयार कर रहे हो कि अगर तो थोड़ा सा और डिटोरिएट होता है पेशेंट, तो पेशेंट बी एबल टू प्रोनिट फॉर अ लॉन्गर टाइम. तो मैं क्या बोलूंगा इस पेशेंट को, जब मैं ऑक्सीजन स्टार्ट कर रहा हूँ और नेजल कैनुला ऑल्सो, आई टेल हिम टू कीप शिफ्टिंग इज पोजिशन. ठीक है. एक बार सीधा लेटा है, फिर टेढ़ा लेटे, फिर उल्टा लेटे, फिर लेफ्ट में लेटे, फिर सीधा लेटे. ओके. रिपीट दिस इन साइकिल्स ऑफ 2 आवर्स. ओके. तो अवेक प्रोनिंग कब स्टार्ट करनी है? अवेक प्रोनिंग आपको तब स्टार्ट करनी है जब व्हेन द पेशेंट इज नॉट स्टेबल ऑन 2 लीटर्स ऑफ ऑक्सीजन. ओके. और FiO2 ऑफ 28% पे पेशेंट इज नॉट स्टेबल, तब आप स्टार्ट करोगे योर अवेक प्रोनिंग. ठीक है. अब दिस इज अबाउट स्टेप 1. स्टेप 1 नेजल कैनुला. तो अब मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे आगे स्टेप अप करना है या नहीं करना है? मैं नेजल कैनुला देख करके I'll wait for the patient to become all right. Wait for the patient मतलब मैं SpO2 मैनेज करूंगा. SpO2 I'll manage it. I'll keep it close to somewhere 94 to 60, 94 to 96. एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट, SpO2 टारगेट कभी भी 100% नहीं होना चाहिए. ये काम कर रहे हो तो आपसे बड़ा गधा कोई नहीं. आप डैमेज कर रहे हो पेशेंट को. यू आर कॉजिंग डैमेज टू द पेशेंट बिकॉज ऑफ हाइपरऑक्सिया. ठीक है. फ्री रेडिकल्स बन रहे हैं पेशेंट की बॉडी के अंदर, डैमेज हो रहा है. 100% should not be your target. What should be your target? I'll tell you later. In step 1, assume your target to be around 94 to 96. तो ओवरऑल टारगेट मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है. देखो टारगेट क्या होना चाहिए? What is the target that I need to have? Target for SpO2 should be 90 to 94%. ठीक है. इन केस ऑफ योर वेंटिलेशन या स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 के अंदर पहले से 94 है तो 96 तक आप लेके जा सकते हो. ऐसा नहीं है कि पेशेंट का सैचुरेशन 96 है और आप उसको और बढ़ा रहे हो, फ्लो रेट और बढ़ा रहे हो, नहीं जरूरत है. 96 इज गुड इनफ. ठीक है. तो 96, 95 इज गुड इनफ. स्टार्ट द पेशेंट ऑन नेजल कैनुला. ठीक है. 1 to 6 लीटर्स पर मिनट. अब एक प्रोनिंग है 28%. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट स्टेप, व्हेन शुड आई स्टेप अप? 1 से 2 घंटे के लिए मैंने मॉनिटर किया, पेशेंट का ऑक्सीजन फ्लो रेट मुझे बढ़ाना पड़ रहा है, 6 लीटर्स में पहुंच चुका हूँ, स्टिल द सैचुरेशन इज नॉट मेंटेनिंग, स्टिल द पेशेंट इज हैविंग डिस्निया, देन आई हैव टू स्टेप इट अप. रिमेंबर, रीअसेसमेंट कब करना है? 1 से 2 घंटे बाद. ठीक है. तो 1 से 2 घंटे बाद सैचुरेशन फॉल हो रहा है, 6 लीटर ऑक्सीजन पे पेशेंट ऑलरेडी है, SpO2 हैज बिकम हाउ मच? लेस देन 90%. ठीक है. लेस देन 90% हो गया, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ, तो आई हैव टू स्टेप इट अप. ठीक है. या फिर पेशेंट, देखो दो चीजें, या तो मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा हूँ पेशेंट का सैचुरेशन एट अ लेवल ऑफ 94 to 96%. ठीक है. तो आई नीड टू स्टेप इट अप. ठीक है. और अगर सपोजिंग पेशेंट आता ही मेरे पास इस सिचुएशन में विद सैचुरेशन ऑफ लेट्स से 85, 86, 87, 88, ठीक है, लेस देन 90, और उसकी रेस्पिरेटरी रेट 24 to 28 है. ठीक है. एंड इज हैविंग ऑल दीज साइंस ऑफ लेबर्ड ब्रीदिंग. ठीक है. एंड ऑफ कोर्स दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस, GCS एंड ब्लड प्रेशर. अगर पेशेंट GCS मतलब पेशेंट इज कंफ्यूज्ड, पेशेंट हैज अल्टर्ड सेंसोरियम, ठीक है, एंड द पेशेंट इज इन शॉक, तो आप इन तीनों स्टेप में से कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये इन 3 कंडीशंस के अंदर द पेशेंट नीड्स टू हैव अ
इनबिल्ट रेस्पिरेटरी ड्राइव। अगर पेशेंट अनकॉन्शियस है, शॉक में है, तो यू कैन नॉट एक्सपेक्ट द पेशेंट टू ब्रीथ प्रॉपर्ली ना, तब आपको वेंटिलेशन ही करना पड़ेगा। मैं आपको कह रहा हूँ कि जब तक पेशेंट स्टेबल है तब तक आप नॉन इन्वेजिव मेथड्स यूज कर सकते हो। द मोमेंट द पेशेंट बिकम्स अनस्टेबल एंड द पेशेंट इज हैविंग कोविड ARDS, गो फॉर इन्वेजिव वेंटिलेशन। ठीक है, of course GCS and BP are normal for step 1, step 2, step 3, step 4 is ventilation invasive। ठीक है, okay, so SpO2 less than 90, respiratory rate 24 to 28, don't be rigid about it, and the patient is stable। अब इसके अंदर दो ऑप्शंस हैं, one is your Hudson mask, one is your NRBM। ठीक है, I'll show you the photos also if it is available। ठीक है, ठीक है, हडसन मास्क ये आपने देखा होगा। ठीक है, दिस इज व्हाट योर हडसन मास्क लुक्स लाइक। ओके, एंड दिस इज व्हाट योर NRBM लुक्स लाइक, नॉन रीब्रीदिंग मास्क। अब इसके अंदर क्या होता है, देयर इज अ बैग अटैच टू इट। यस, तो दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन, दिस इज अ बेटर ऑप्शन अमंग हडसन मास्क एंड NRBM, विच एवर इज अवेलेबल, ऑफ कोर्स दैट कैन बी यूज्ड। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं इसके अंदर। ओके, देखो हडसन मास्क और NRBM में बेटर कौन सा है? डेफिनेटली NRBM। क्यों? क्योंकि NRBM हैज द एबिलिटी टू डिलीवर अप टू 95% FiO2। समझ रहे हो आप बात को? ठीक है, इट इज मोर देन अ वेंचुरी मास्क, मैंने शुरू में बताया था आपको, हाईएस्ट। ओके, इज 60 to 95%। ओके, NRBM ऑफ कोर्स हाई फ्लो के अंदर, हाई फ्लो नेजल कैनुला वो 100% तक डिलीवर कर सकता है, बट आई एम कंसिडरिंग एट स्टेप 2। ओके, इट इज बेटर देन अ वेंचुरी मास्क के ऊपर क्वेश्चन भी आया, आई थिंक एम्स में आया था, जुलाई एम्स में। ओके, NRBM हाईएस्ट FiO2 60 to 95%। रेट क्या है सर इसकी? मतलब अपना रेट ऑफ फ्लो क्या डिलीवर करता है, यूज करता है 10 to 15 लीटर्स पर मिनट। ओके, 10 to 15 लीटर्स पर मिनट। ओके, हडसन मास्क अप्रॉक्सीमेटली 6 लीटर्स पर मिनट की रेट से डिलीवर कर सकता है ऑक्सीजन, एंड FiO2 समवेयर अराउंड 60%। ठीक है, 40 to 60%। ओके, प्रेफर NRBM ओवर वेंचुरी मास्क इफ यू हैव इट। ठीक है, ओवर अ हडसन मास्क इफ यू हैव इट। स्टेप 3, अब मैंने 1-2 घंटे बाद दोबारा असेस किया, पेशेंट का सैचुरेशन नहीं बढ़ रहा है, मैंने NRBM के ऊपर 15 लीटर ऑक्सीजन चला रखा है, अभी भी कोई काम नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, द पेशेंट्स रेस्पिरेटरी रेट लेट्स से इज अबाउट 28 to 35 के बीच में। ठीक है, पेशेंट का सैचुरेशन फॉल कर रहा है, लेस देन 90 हो गया। ओके, एंड द पेशेंट्स एस बाई क्या बोलते हैं, S/F रेशियो। ओके, S/F रेशियो और P/F रेशियो, ये मैंने डिस्कस नहीं किया शुरू से ही, तो अंडरस्टैंड दिस। P/F S/F रेशियो अगर लेस देन 300 है, ठीक है, तो इसका मतलब ARDS की तरफ जा रहा है पेशेंट। बट क्या मुझे वेंटिलेटर पे डालने की कोई ज़रूरत है? नहीं। वेंटिलेटर पे कब डालोगे? S/F रेशियो 196 से कम एंड P/F रेशियो 150 से कम, तब हमको वेंटिलेटर पे डालना होता है। तो इन 1, 2 and 3 द पेशेंट कैन बी इन ARDS। ठीक है, 300 to 150 हो सकता है, यूजुअली 1 पे अपने को मोर देन 300 मिलता है S/F रेशियो, बट स्टेप 2 स्टेप 3 के अंदर द S/F रेशियो कैन बी बिटवीन 150 to 300। ठीक है, सॉरी, P/F रेशियो कैन बी बिटवीन 150 to 300, है ना। चलो, अब ऑन स्टेप 3 वी हैव 2 ऑप्शंस, हाई फ्लो नेजल कैनुला एंड नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन। मैंने आपको पहले बताया था नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन किसमें प्रेफर करनी है, व्हेनेवर दैट इज इंक्रीज्ड PaCO2, फॉर एग्जांपल COPD, कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा, ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया और ओबेसिटी। ठीक है, इन सब केसेस में मुझे प्रेफर करना है कि नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन में स्टार्ट करूँ। ठीक है, अब आप बोलोगे कार्डियोजेनिक पल्मोनरी एडिमा तो ARDS के अंदर आता ही नहीं है, बट हम कोविड की बात कर रहे हैं। रिमेंबर, कोविड इज अ हाइपरकार्डियोटिक स्टेट, तो ऐसा हो सकता है पेशेंट को MI का अटैक पड़ जाए या राइट वेंट्रिकुलर फेलियर हो जाए, उसकी वजह से पल्मोनरी एडिमा डेवलप हो जाए, तो उस केस में क्या करोगे? उस केस में गो फॉर नॉन इन्वेजिव वेंटिलेशन, प्रेफरेबली BiPAP ओवर CPAP। ठीक है, देन इन अ नॉर्मल पेशेंट हु इज नॉट फॉलिंग अंडर दीज कैटेगरीज, या फिर क्वेश्चन के अंदर मेंशन नहीं किया, तो विल गो फॉर हाई फ्लो नेजल कैनुला। ओके, तो हाई फ्लो नेजल कैनुला के एडवांटेजेस क्या है? हाई फ्लो नेजल कैनुला डिलीवर्स, एक तो अपना रेस्पिरेटरी वर्कलोड कम करता है। क्यों? क्योंकि मैं हाई फ्लो मतलब कितना फ्लो, हाई फ्लो का मतलब इट इज समवेयर अराउंड 60 लीटर्स पर मिनट, 30 to 60 लीटर्स पर मिनट। तो उस फ्लो की वजह से क्या होता है ना, देयर इज अ पॉजिटिव एंड एक्सपिरेटरी प्रेशर, एक्सट्रिंसिक पीप ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है इन हाई फ्लो नेजल कैनुला। ठीक है, एंड दैट इज द रीजन दैट वर्क ऑफ ब्रीदिंग ऑफ द पेशेंट इज रिड्यूस्ड। रेस्पिरेटरी रेट और उसकी जो नेजल फ्लेयर है ना, अपने आप कम हो जाएगी। ठीक है, वेरी मतलब इनिशियली इटसेल्फ विद हाई फ्लो नेजल कैनुला। ठीक है, बट व्हेनेवर यू गिव हाई फ्लो नेजल कैनुला, रिमेंबर दैट इट इज अ एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर, एरोसोल जनरेटिंग प्रोसीजर। ठीक है, तो ऑलवेज आस्क द पेशेंट टू वेयर अ मास्क व्हेनेवर यू आर गिविंग हाई फ्लो नेजल कैनुला, एंड यू ऑफ कोर्स वेयर अ PPE किट सो दैट यू डोंट गेट एक्सपोजर टू कोविड। ठीक है, ओके, ठीक है, ओके। नाउ स्टेप 4, व्हेन डू यू स्टार्ट वेंटिलेशन। अब अगर मेरा हाई फ्लो नेजल कैनुला काम नहीं कर रहा है,
मैंने 1 से 2 घंटे तक पेशेंट को हाई फ्लो नेजल कैनुला दिया। अब ये काम कर रहा है नहीं कर रहा है कैसे पता चलेगा? दिस इज गोइंग टू बी असेस्ड बाय समथिंग कॉल्ड एज रॉक्स स्कोर। ठीक है, रॉक स्कोर विल टेल मी अबाउट दिस। अब रॉक स्कोर क्या होता है? इट इज S/F रेशियो डिवाइडेड बाई रेस्पिरेटरी रेट। फॉर एग्जाम्पल पेशेंट का SpO2 80 है, FiO2 100 है, रेस्पिरेटरी रेट 28 है, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? SpO2 मैंने 80 पुट किया, FiO2 100 मतलब 1, ठीक है, और रेस्पिरेटरी रेट 28। तो अंडरस्टैंड दिस, जब मैंने पेशेंट का हाई फ्लो नेजल कैनुला कैलकुलेट स्टार्ट किया था तब मैं एक रॉक स्कोर निकालूंगा। ठीक है, अब अगर रॉक स्कोर कॉन्स्टेंटली डिक्रीज हो रहा है, इफ इट इज डिक्रीजिंग दैट मीन्स आई नीड टू शिफ्ट द पेशेंट ऑन अ वेंटिलेटर। ठीक है, इफ इट इज डिक्रीजिंग, इफ इट इज इंक्रीजिंग, वेल एंड गुड, इट इज वर्किंग। Okay, so ROC score is something that tells me about whether or not your high flow nasal cannula step 3 in short is working or not. ठीक है, वेंटिलेट कब करना है? when P/F or S/F is less than 150 or 196. ठीक है, when the patient is unstable and when step 3 is not working. ठीक है, ओके, तो इसका मैनेजमेंट इज बाय ARDS प्रोटोकॉल। हमने पहले से डिस्कस किया था। क्या डिस्कस किया था? लो टाइडल वॉल्यूम, हाई पीक एंड लो पीक प्लेटो प्रेशर लेस देन 30 सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर। ठीक है, टारगेट SpO2 मैंने आपको बताया 90 to 94 के अराउंड इज गुड। COPD के अंदर इवन 88 to 92 is good. You don't have to wait for 100. You don't have to give oxygen till it reaches 100. That is absolutely nonsense, baseless. You're damaging the patient. ठीक है, so that is about COVID. Okay, चलो आगे बढ़े, देखते हैं टाइम कितना बचा है। It is 8 o'clock guys. It is 8:30 in my house and I think I'll have to leave now. ठीक है, so it has been a good 2 hour stream. So the rest of the respiratory medicine and followed by your nephro and rheumat we'll cover in the subsequent sessions. And this is it from my side guys, and if you like the stream, okay, I'm doing my best to provide what I have gathered, the information that I've gathered, the knowledge that I've gathered in the uh, years of my MBBS, and which has helped me secure this rank, which has helped me to be the doctor that I am today. So please do spread it. That's all I'm asking कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, ठीक है, इस चीज़ को, and of course like the video and subscribe to the channel. And if you want to join my Telegram group, I have a Telegram group also. ठीक है, अगर आपको PDF वगैरह चाहिए तो Telegram group मैंने बनाया हुआ है यहाँ पर, तो यू कैन DM मी ऑन Instagram. ओके, ठीक है, हियर आई डिस्कस कि क्या क्या मतलब क्या क्या किस पे वीडियो बनाना है, टाइमिंग्स क्या रखनी है। ठीक है, सो दिस इज माय इनर सर्कल। तो हाउ डू यू गेट इन दिस इनर सर्कल? ठीक है, तो इनर सर्कल पे मैं खुद ही आपको ऐड कर सकता हूँ और कोई ऐड नहीं कर सकता। एंड द रीजन दैट आई मेड इट लाइक दिस इज कि इफ आई ऐड एनीबडी टू दिस ग्रुप ना, व्हाट विल हैपन, इट विल बी वेरी chaotic. ठीक है, somebody will tell कि इतने बजे स्ट्रीम करो, ये करो, वो करो, एंड दे वोंट इवन कम टू द सेशन। तो मैंने सिर्फ सिंपल सा ये क्राइटेरिया रखा है कि आप मुझे इंस्टाग्राम पे एक बार DM करो, तो आई विल टेल यू टू शेयर द लिंक इन योर स्टोरी एंड सेंड मी द स्क्रीनशॉट। तो इससे मुझे सिर्फ ये पता चल रहा है कि आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो, जेन्युइनली इंटरेस्टेड इन watching my content, because this these notes, these 3 notebooks that I prepared, it has taken a lot of effort, and I don't want it to be lying around in somebody's phone, the PDFs of those things. If somebody doesn't appreciate the content, there is no point giving it to them. Okay, so if you're genuinely interested, you like my content, do send me a message on my Instagram account. Okay, I'll add you to my Telegram group, and of course there is free content here, check it out. And that is it from my side guys, and thank you so much. I'll be seeing you again tomorrow. All right, so goodbye and take care, and thank you so much.